Jai Bhim friends, today we have a special guest, Dr. Hemangi Kadlak, uh, who is a scholar and done a lot of work with the manual scavenging communities, with the sanitation workers, particularly the women and children. Her PhD is basically on the Safai Karmachari women, perhaps in Mumbai, and she has been associated with a lot of academic institutions. Her study is also part of the IIM Ahmedabad. So we are going to listen from her all her struggles, her vision, and what she aspired to do, and her experiences for which can be helpful for a lot for the young aspiring youngsters who want to do not only the social work but also academically active in it. So thank you, Hemangi. Welcome. Congratulations first your PhD completion. Uh, how tough was your journey when you are doing this work, PhD, and with the tests? Thank you for inviting me for this conversation. And yeah, the journey started with my entry. Even before that, Okay. like when I started voluntary work with the Safai Karmachari community in Trichy, Tamil Nadu. And the reason behind to start with, like I wanted to do some kind of work with the down-to-earth people who are really uh, down in all social system. Uh, and this community is derived from this social strata, and even the occupational structure also they are in the lowest of the lowest strata. And the initial during my masters, I had developed interest with children and education and youth mostly. So I wanted to work. So then I thought what to start or where to start. So there was a community, Safai Karmachari community. So I started that is a Sankulam colony, that is one of the biggest colony in Trichy. So I started voluntary work with mostly youngsters, those who are a first generation higher educated, that is college educated, and they were pursuing at that time. And I started mobilizing them and started taking their kind of personality development or how to take the future, aspiring their kind of future, and how to become a role model for their country, because these are the first generation. And even the history, even your literature, even the field says that the lot of dropout cases are more, illiteracy, less education is more. So these are the first generation. So I started work with them, and it was going well. And then even I told them like you can just whatever you have learned or whatever education you have, you just give it to your coming generation, that is the children. So they will take the advantage of you, because you may not have had that kind of experience or had that kind of privilege where anybody will can assist you, but at least you are there, so you can assist them, so at least they will be more superior than you. So like that my work started. And then I felt to start with academic work, and therefore I joined MPhil Bishop Weber College. And the topic I chose for that Safai Karmachari. So since then, my journey started almost in 2007, and since then I'm associated with them. And the journey again extended to my PhD work, and that my PhD work is I have done work with the Safai Karmachari community in the Kalyan area. So here I have taken mostly the first generation educated children and their aspirations level and their education problems and their struggle and what are their coping mechanisms and how they are looking forward in their future.
So this is the, yeah. That's a really very I would say a very wonderful work, because you pursued your academics and working also. So this is a Yeah. remarkable feat, I would say, because not many people are able to do that, because pursuing their academic work and doing the community work. So that's a very powerful thing, I would say. It gives a lot of strength. Thank you. So you belong to Maharashtra, basically. Yes, I belong to Maharashtra. I belong to the caste which I belong to. It is a SC, that is a converted Buddhist. We are Okay, ex-Mahas. okay, okay. Yeah. So in Maharashtra, basically, this work was like, who are the particular communities engaged in this? Actually, I was reading your papers, so you had given several names, but which is the particular community engaged in the manual scavenging work or sweeping work? Yeah. So I have done my study mostly in Kalyan. My Yes. work area was in Kalyan. So Kalyan, there I found four communities, four castes. Predominantly is Rukhi, that is the majority of Rukhi. From Rukhi caste, Gujarat. you might, Gujarat. They have migrated from Gujarat. Mhm. Actually, one can say when they migrated that time, Maharashtra was a Saurashtra, because that Okay. time Gujarat Okay. was also, Part of yeah, Maharashtra. Yeah. yeah, Maharashtra, because they came during the time of British. So it Okay. is not an interstate migration. It is like Yeah, it's within a state. within state migration. But after 1960, they became like you are from another state, Yeah, and then yeah. the In, issue again got more kind of problematic for them, because that time this was their state. But and now the people are saying this is not your state. So you just because their language is Gujarati. But basically, they migrated during the time of British. yeah. So that time that was their own state. Yes, yes. I Yeah. think this migration problem is coming a lot in Maharashtra. I heard from other friend also that 1960 they want you to have this certificate, and if you are migrated to the state after 1960, then they will ask from your traditional, like the native place, you have to get the certificate. Yeah. Yeah. And they said that, ma'am, like we don't have now anything, because if you see the scheduled caste, okay, if you see and mostly the people who are in this work, okay, Safai Karmachari work. Yeah, Actually, yeah, there this is maybe they don't know how many generations they have been in this work. Okay, so yes, yes, this is maybe fourth generation, third generation, or fifth generation, or sixth generation. They don't know. And yeah, that time nobody was educated. They were not having light at home. yeah, Their houses were of mud. Okay, there were no system to keep any document. Actually, they didn't go to school, so they don't have any document. Not even they don't have birth certificate. Neither they don't have caste certificate. Neither they have a uh, school certificate, like entry certificate or a living certificate. Don't have, because that time the system was not there at all. The formalization of kind of documenting anything, it was not there. So one parent was explaining me that madam, during their in the house in the old time when they were child, so that time the house was of mud and cow dung, and they were having only that rockelka, that so they were having a rod to keep all the papers in that. okay, So we don't have any other facilities. So how we can get any certificate or caste certificate, how or where we can keep? And they didn't have. So that is the one yes, Rukhi caste. Another is Valmiki caste. Third is a Matan caste, and fourth okay, is that is ex-Maha, that is a Buddhist, presently okay. Buddhist. So four castes are predominantly I found involved in this occupation. Mostly those who reside in the Kalyan area. Okay, okay. Yeah, yeah. I read that your survey of
But the survey was done basically with those who are working with the municipal workers or those who are doing it at the private houses also. There are three type of combination. One is a government servant, that is a BMC, and maybe the BMC or the railway, or maybe the Kalyan Domboli municipal corporation. That is one. Another is a contract basis. Third one is like individual kind of, they go search the job, and the building wise they get the money. So that is a personal kind of private work. Private work. So that is the three type of work these people they do. Okay. Yeah. So what happens actually? I was reading one of your recommendations actually, where you said that this work should be not. It should be maybe allowed for all other communities also. Like sometimes it is just 100% reservation for the manual scavenging community, Safai community. So I think that report you said that it has to be reserved for all. But when you say this thing, there will be a lot of protest from people. They'll say that this job we're trying to get to other people. So how? What do you think about that? There is a resistance among many in the community. Yeah, definitely they will have a resistance. See, I found two type of people in the community. Okay. Yeah. One is those who are little bit red one, and those who understand why these people are involved in this work. They mostly are the leaders. So they said that or maybe the young generation, they are telling that this work should be across, or anybody can take that work. It should not be caste-based. It should not be the caste-based. But when you take the opinion of those who are less educated, or their children are not much educated, they mostly prefer to have the generational work. Why? Because obviously because these people, they don't know how many generations they are carrying this work. So it is like they are authority on that profession. So they feel, and they don't look their life, or they don't see their world beyond this occupation. They have a fear, or they feel that we are incapacitated, or we cannot do any other work than Safai Karmachari. So it is in their mind. It is in their mind. They feel that no, this is the only work we can do in a better way, and from generations we are doing. ये हमारा काम है. They say that ये हमारा काम. Expert हो गया मतलब विशेषज्ञ. Yeah, but how long they will say? Because see, this is not a good work. This is not a kind of CEO work. If you say that CEO work, and then if you say then or it is a kind of lawyer work, or maybe so, but it is a most derogatory. It is inhuman work, and it is kind of it is a caste-based work. It is like by hygiene wise, by health wise also it is not good. So we know such thing. They don't know. So for them it is good only for them, because they are getting monthly, they are getting some kind of money. So they feel that okay, this is ये हमारा काम है, किसी को देने का नहीं. ये हमने किया है, सालों साल ये हमने काम किया है. अगर ये दूसरा कोई करेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन इस पे एक सवाल जो आता है, बिकॉज इट्स गुड दैट यू स्पोक देयर, इस पे एक सवाल जो खड़ा होता है खास करके, वो लोग ये कहते हैं जब तक तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था या इस पे पैसे नहीं थे, तब तक तो हमको ही काम कराने दिया गया ये काम. जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो खास करके जो क्लीनिंग ऑफ द नाइट सॉइल है, टॉयलेट का साफ करना है, ये अभी भी वही कम्युनिटी में ही जा रहा है. और जब ये म्यूनिसिपैलिटी का काम आ गया, जिसपे थोड़ा सी दे थिंक इट इज बेटर वर्क, इट्स नॉट रियली दैट, तो खाली 2 से 5 तक 3 घंटा काम करना है तो चल ठीक है, स्ट्रीट में हम कर लेंगे. तो दे फील है कि ये काम हमको छोड़ देंगे तो हु एल्स इज गोइंग टू गिव अस द न्यू जॉब. So that is one fear, because most of the community is living in the urban areas, and they know they are the victim of untouchability within the Dalit communities also, within the whole. और ऊपर से तो है ही है अनटचेबिलिटी, लेकिन नीचे भी है.
सारी जगह पे people isolate, and that's why I asked this question many times. I said, why are you on this, and we should like do other work. So they say, first thing is that we agree with this. So the youngsters are saying we don't want to do this work. In fact, I was a part of like I did many places this work. I asked many people like that they should leave it. So the younger community that I work with, they say we don't want to engage with this work, and they were like proudly saying whatever we, even if I want to become a carpenter or a repair or mechanic or a driver or an engineer or whatever, but not in this. So that is for many, but many people think that the municipality work is a kind of a kind of a protection, where if you open it for all, because some of the example I'm giving you, long back I had gone to West Bengal, and I was given this complaint by people that Bengali, mostly that time they were the left front government, and they say we don't believe in caste system and we give to everyone. But what happened, the non-Dalit, non-Valmikis particularly, not even non-Dalit, non-Valmikis who got the job in the sanitation work in the municipality, they got the job, but they never went to clean the streets. So the cleaning the street was the work of the particular people, and these people would certainly after 2 3 years will become like a headman, or they will assign them in office work. They won't assign the Valmiki community person in the offices. They will assign the other. So this is the fear that even in UP, when the last few years when the UP government asked that we will appoint the Safai Karmacharis in the panchayats. So the salary for the panchayat Safai Karmachari was about 15,000 rupees that point in time. While in the municipality that is not there. Municipality तो आजकल आप जानते हैं ये तीनों layer में they are like those who are the pakka karmacharis who get a, like after some time, but otherwise they are in 5,000, 2,000, 3,000 or all this range, not even 10,000. So a number of even OBCs and upper caste enroll themselves for that, and they got the job after giving the money, and they don't clean the things. They will just 1 2 day. So this was a fear. So what do you think about this? How it is to resolve this crisis? Yeah. So yeah, this issue has been discussed among the and with the Safai Karmachari people. But still, I do remember the conversation between them and me. Mhm. Like they say that, madam, when we were carrying the shit on our Yeah. head, Yes. that time nobody was raising Yes. we also want to हम भी करेंगे ये काम. engage with such kind of work. Okay. But as much as the modernization or maybe some kind of sophistication Yeah. or some kind of equipment started coming into that work, Yes. so other caste people, they are raising that this occupation can be, or government started recruiting Yeah. to everyone. But that percentage is how much? My argument is that percentage is how much? If you say that 5% people are coming from other caste, see, Brahmin you will not find hardly 0.0001 or 2%, 1 or 2%, not much. Yeah, yeah. Only 1 or 2%. No, you will not get. Yeah. Who will get the SC people, ST people, OBC people? Like that. Even forward caste people also will not come. OBC also Okay. very less. Very less. Yes. Very less you will get. So such kind of thing will be there, and majority, almost 95%, if you say that, these people, those who are from generations they are doing. So in that case, definitely it will be there. Such kind of classes will be there, because now we have to literally open up now and let the mechanization, let them enter, let the Brahmin come, and let them have a mechanization. No problem.
Yeah. Why? Because we are not saying that Brahmin should go into the manhole. No, Yeah. we are also telling that nobody should go. Yes. I am not telling Yeah. that only Safai Karma, that No, SC yeah. or the Valmiki or the Rukhi caste should not go. I am telling Brahmin also should not go. Yeah, yeah. Nobody If should he be join going. that Yeah. work, Yeah. if he join that work, he should not also go. Now, why Yeah. he should Yeah. go? Because Yeah. ultimately, this is also a matter of humanity. This is a matter Yeah. of Yeah. human being. So Yeah. nobody should go. Nobody should go. Nobody should clean that. So Yeah. let them come and let them have a mechanization of work. Let them, the work condition should go up. That will be good. No, And no. let your present generation go in a higher education. Yes. So you demand, let Brahmin come in our place and let our children go in the Brahmin place, in officer's place. Yeah. Your argument should be like that. Yeah. So Why so, you are holding that position which is not comfortable for generation, and which you know that what are the drawbacks of that occupation, what are the bad condition of that occupation, just get rid of. I can understand the present generation who are on the occupation. They may not leave that because they have family responsibility, because they are a bread earner. Yeah. So maybe they will work for 20 years. Okay, fine. You work for 20 years, but make sure that your generation, next generation should not go into that work. Make sure that your next generation should go and become become a Supreme Court judge. Have that tendency. yeah. So that's a very good argument, and I appreciate that. So because I want they should listen to this viewpoint from your, how like you struggle from very beginning. So I didn't want to introduce you that way. So you came from a family where your father was working in the Mumbai Port Trust. Yes, he was So, in the Mumbai Port Trust. yeah, yeah. So people should know where have you come from and how you have worked hard. So because these stories then become inspiring for others to learn, and that we can also do, we can also reach. Because otherwise we live in a very stage where people are so depressed that they don't even dream. So I want people to dream, and your success story is a story that when we dream and work hard, not merely dream, so that they reach. Yeah, because you don't Romanticize. romanticize the your Yeah. patheticness or your situation. Don't, just get rid of it. Just get rid of it, because even Baba Sahib, he was telling in one conference in women conference. So he was addressing women. So he was telling that when the SC woman, okay, when she carrying a baby in her womb, so that time she imagined that how my child will get a position in a Safai Karmachari in the office. But when the upper caste, the Brahmin woman, when she carries the baby in her womb, she will think how my child become an officer of that office. So see the mentality here. What the change? It has changed your mindset. It has changed your vision. It has changed your goal. No, you have to just get rid of your this set mindset and just liberate yourself. I know that, and you should not demand. And you should not demand that my father has done such work, so I also should go into that work, because now it is making more comfortable. Now 2 hours only job, 3 hours only. I just have to sign up and then get rid of, and then I will be at home. Why you want to live in the lazy life? Yeah. Just channelize your mind, just channelize your energy and struggle hard and get good education. Maybe like first generation now, these children are those who have done BBA, Bachelor in Business Administration or MBA. What that their vision is, like they want to go for a high, masters for to the higher to the foreign education, and they will come back. They will establish their own business, and they will run the business, and they will recruit their community people first, so that nobody can go into that dirty work.
see the vision of the new generation. They are not demanding that we want government job in the Yes. Safai Karmachari. No. So see and learn from your people who are going and who aspiring that to see their community in a different level. So it is just a transition. You bear that transition. It will have a tremendous change if you really accept the changing reality. So, just for our many friends who are in the Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, उनको थोड़ा सी ये बताएं आप हिंदी में, because you हाँ कि कैसे अपने एस्पिरेशन को लें, कैसे आपने स्ट्रगल किया, तो आपके स्ट्रगल के जरिए उनको पता चलना चाहिए कि कुछ कैसे हमारे लोग जो है स्ट्रगल करके, आपके भी घर में दिक्कतें हुई होंगी, आपके मम्मी पापा ने परेशानियां हुई होंगी आप जब आगे निकल रहे थे, तो ये थोड़ा सी, क्योंकि एक घर से भी लोगों को बहुत दिक्कत होता है, खास करके एक लड़की का होना, जो हमारे समाज में जो प्रेजुडिसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे, हाउ डिड यू फाइट, लाइक किस प्रकार से और क्या मैसेज उनको जाएगा, हमारे लोग जो साथी जो देखेंगे, हम चाहते हैं कि उसको एक आप उनको कुछ बताएं कि उनके क्या रोल मॉडल होने चाहिए, कैसे आदर्श होने, कैसे फाइट करें, फिर घर पे फाइट होती है, फिर घर से बाहर भी होती है, दोनों तरफ होती है ना। देखिए, अगर मैं जिस घर में पैदा हुई, उस घर में जो मेरे पिताजी थे, भले वो सफाई कर्मचारी में इन्वॉल्व थे, सफाई कर्मचारी, स्कैवेंजर उनका डेजिग्नेशन था तभी। अच्छा, स्कैवेंजर क्या डेजिग्नेशन होता है क्या? हाँ, अच्छा, बट आई नेवर न्यू अबाउट दिस, बिकॉज नॉर्मली बंगाल में करते थे मेहतर नाम से, तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया था एक बार कि दिस इज रॉन्ग। हाँ, तो स्कैवेंजर ऐसे मैनुअली, ये तो मतलब नॉर्मली सफाई कर्मचारी या स्वीपर का जैसे पोजीशन होता है ना? नहीं, ये अभी है, लेकिन वो टाइम पे ऑलमोस्ट 92, 93। अच्छा, स्कैवेंजर, अरे हाँ, तभी था बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, उनका डेजिग्नेशन था स्कैवेंजर। हाँ, तो भले वो सफाई स्कैवेंजिंग प्रोफेशन में थे या सफाई कर्मचारी के काम में थे, लेकिन उनका जो रीडिंग था या जो माइंडसेट था वो पूरा अम्बेडकराइट था। भले मतलब उन्होंने कन्वर्शन किया, भले उनके माँ पिताजी तो जब थे तभी तो वो तो महार करके ही थे। अच्छा। जब मेरे पिताजी भी पैदा हो गए वो महार करके ही पैदा हुए। अच्छा। लेकिन जब उनको एक अच्छा सा कोई फ्रेंड मिला और उनको उनसे मोटिवेट होके उन्होंने फर्स्ट कन्वर्शन किया बुद्धिज्म में, खुद होके कन्वर्शन किया। अच्छा। तब से फिर तब से फिर उन्होंने जितना पढ़ा है, बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे, वो रात भर रीडिंग करते अच्छा। थे। इस तरीके की रीडिंग करते थे कि ऐसा लगता था कि उनका एग्जाम है कि क्या कल के दिन या परसों के दिन। तो जैसे मतलब शायद इसके लिए करते थे क्योंकि जिंदगी में कभी उन्होंने इस तरीके के विचार पढ़े नहीं होंगे, पहले नहीं पढ़े होंगे जिंदगी में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा कि ऐसे भी विचार हो सकते हैं। तो रात भर पढ़ते थे। तो वो, और जब मैं बड़ी लड़की थी घर में, तो वो मेरा और उनका रिलेशन जो था वो एक फ्रेंड जैसा था। अच्छा। बहुत ज्यादा फ्रेंड जैसा था। तो कहीं पे भी फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे तो मुझे लेके जाते थे, फिर कहीं पे भी फंक्शन में जाते थे मुझे लेके जाते थे। इवन घर में किस कलर का फ्रिज लाना है वो भी मुझसे कंसल्ट करके। मतलब हमारा दोनों का जो जोड़ी था वो एज ए मोर फ्रेंड था, क्योंकि उनका शादी 21-22 साल में हुआ और तुरंत मैं पैदा हुई। तो 22-23 एज के हमारे इसमें डिफरेंस था। तो हमारा जो रिलेशन हुआ हमेशा उन्होंने बरकरार जो रखा एज ए फ्रेंड जैसे रखा। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किससे डिस्कस कर रहे हैं, या उनको भी लगा नहीं, या शायद वो मेरे से इसलिए ज्यादा कंसल्ट करते थे क्योंकि मैं पढ़ती थी और वो 7th ड्रॉप आउट थे। तो उनको ये लगता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक पेन होगा घर अंदर से। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो अगर कुछ फॉर्म भी भरना है, कुछ भी ऑफिस का फॉर्म है या कुछ भी है, तो मेरे से भरवाते थे। मुझे नहीं आता है, तुम भर के दो। तो आई वॉज लाइक हिज काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड, सो ऑल द टाइम आई एम देयर। तो फिर वो हमेशा यही हमारे ऊपर संस्कार उन्होंने किए, बाबा साहब के संस्कार किए, बुद्धिज्म के संस्कार, क्योंकि उन्होंने दीक्षा भी ली थी। उन्होंने श्रामणेर भी बने थे। तो घर में बहुत सारा बुद्धिज्म का माहौल था, बहुत सारा अम्बेडकराइट का माहौल था।
एंड उसके साथ साथ वो हमेशा बचपन से हमें ये बताते थे, एटलीस्ट मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है कि देखो बेटा, हम तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, माँ पिताजी, लेकिन जो सोशल फादर है, जिसके कारण तुम यहाँ पे हो, जिसके कारण तुम एजुकेशन ले रही हो, या जिसके कारण तुम समाज में खुलेआम घूम सकती हो, वो है बाबा साहब। और जिन्होंने, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो तुम यहाँ पे नहीं होती। तो ये तुम जितना भी आगे आगे जाओगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम समाज को कुछ तो देके जाओ। बहुत अच्छा। ऐसा तो ये हमें हमेशा ही बोला है कि वो हम बायोलॉजिकल फादर, जो पेरेंट जो है वो तुम्हारे साथ कुछ लिमिटेड तक रहेंगे, लेकिन ये जो सोशल फादर्स है वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बट ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव होते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसीलिए मेरा जो स्ट्रगल था वो इतना बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं था, लेकिन बहुत कंडीसिव इन्वायरमेंट मुझे मिला। तो ये जो मैं जो भी श्रेय देती हूँ वो उनको देती हूँ, क्योंकि घर में अगर उस तरीके का माहौल नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। अगर घर में ऐसा कभी नहीं था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने मुझे लड़की जैसे पाला है, ऐसे कभी डिफरेंस लगा ही नहीं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा घर में कैसे जब उसको ट्रेन करते हैं या उसको कैसे पढ़ाते हैं, ये करते हैं, उस तरीके का ही पूरा वातावरण दिया, उस तरीके का ही पूरा खर्चा भी किया, उस तरीके के इस हर चीज में हमें ये किया। तो बहुत लिबरल, बहुत अम्बेडकराइट एंड बहुत ओपन माइंडेड वाला जो हमारा इन्वायरमेंट था, जहाँ पे हम खुले आम बोल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, मुझे यही करना है। तो जो बच्चा ये जो बोलने की जो उसको फ्रीडम है या उसको जो स्कोप है, वो हमेशा बचपन से मुझे मिला है। दूसरी बात ये है कि मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी में भी वहां पे उनको हमेशा ह्यूमिलिएशन होता होगा, इसलिए वो क्या करते थे, फंक्शन में वो हमेशा मुझे लेके जाते थे और मुझे बोलते थे तुम बोलो। अगर उनका उनके अगर कोई एक सुपरवाइजर मिलते थे, तुम बोलो। तो मैंने बोला तो आप डरते क्यों है? डरो नहीं, वो क्या है, वो इंसान ही है। तो इस तरीके से मैं उनको शायद एक सपोर्ट सिस्टम फील करती होगी, या मुझे वो एक बहुत सारा डिसीजंस में या अपने आप खुलेआम लोगों से बात करने में या हायर अथॉरिटी से बात करने में मुझे वो अपने आप वो एक स्टेज मिलता गया, क्योंकि उनकी वजह से। तो उनकी बात कहना, ये सारी चीजें, तो इसलिए जो घर में जो माहौल, और यही चीज में जब सफाई कर्मचारी कम्युनिटी में देखती हूँ या उनके यहाँ पे देखती हूँ, देखो जैसे मेरा जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, बहुत घटिया था, बदतर से बदतर था। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो भी स्कूल में डाला वो बहुत बदतर स्कूल था। सरकारी स्कूल रहा होगा? सरकारी स्कूल रहा होगा ना? सरकारी जो लोकल मतलब प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट एडेड स्कूल था, लेकिन बहुत बदतर। बहुत ऐसा छोटा छोटा वाला स्कूल, और वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे ढंग के नहीं है और मतलब बैठने के लिए भी ढंग के नहीं है। आज का तो मेरा कहने का मतलब यह है, भले हमारा स्कूल अच्छे नहीं थे, फिर भी हम पढ़े। क्यों पढ़ पाए? क्योंकि घर का माहौल वैसा था। यहाँ पे अगर क्यों बड़े बड़े घर के बच्चे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं या बुरे लाइन पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके का संगत नहीं मिलता, उस तरीके का माहौल नहीं मिलता। तो यही चीज में जब सफाई कर्मचारी कम्युनिटी में जाती हूँ, वो भी नियर बाय स्कूल्स में वगैरह जाते हैं, तो वहां पे भी फिर ड्रॉप आउट रेट क्यों होते हैं? क्योंकि घर का माहौल ही वैसा है। बाप दारू पी के आता है, माँ सफाई कर्मचारी में जाते हैं। मेरे पिताजी खुद बोलते थे, बेटा मेरे यहाँ पे मेरे जो अगर फ्रेंड्स देखोगे, उनके सभी फ्रेंड्स दारू पीने वाले थे, सभी फ्रेंड्स दारू पीने वाले थे। लेकिन ये क्यों नहीं पीते थे? क्योंकि उनके पिताजी दारू पीते थे और उन्होंने देखा था कि उनके पिताजी जब दारू पी रहे थे तो उनका घर परिवार कैसे बर्बाद हुआ। तो बोले कि मैं सातवीं जैसे मैंने स्कूल छोड़ा, उस तरीके उन्होंने फिर वो किन्नर का वगैरह जॉब शुरू किया ट्रक वगैरह में, लेकिन उन्होंने कभी दारू को छुआ नहीं।
क्योंकि उनको मालूम था अगर एक बार मैं दारू छूऊंगा तो मेरा जो जो मेरे परिवार है, पिताजी ने किया है वही वही चीज होगा। तो वो वही बोलते थे, ये सफाई कर्मचारी जो बोलते हैं कि हम दारू पीते हैं क्योंकि हमें वो इस काम में करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ जब मैं सफाई कर्मचारी के लोगों से मिली तो ऐसे लोग भी मिले कि वो सफाई कर्मचारी करते हैं, सफाई काम कर भूलने के लिए जो लेकिन वो दारू शाम को भूलना चाहते हैं तो इसलिए दारू पीते हैं। हाँ हाँ, तो सी दीज आर द ऑल योर डिफेंस मैकेनिज्म है कि और या तुम्हें किस तरीके से ये करना है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, 100 में से 5 या 10 या उससे भी कम लोग मिलेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ आपको क्या मिलेंगे, वो दारू पीने वाले, उसका इफेक्ट उनके परिवार पे होता है, उसका इफेक्ट उनके वाइफ पे होता है, उनके बच्चों पे होता है और ओवरऑल पूरा संस्कार के ऊपर होता है। तो इस तरीके से वो बच्चे जो है ना, मतलब दे आर, मतलब मैं जानती हूँ कि बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर उनको अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे, उनको अगर अच्छा रहन सहन सिखाए तो ये बराबर अपनी लाइन बराबर ढूंढते आगे चले जाएंगे। तो यहाँ तक का मेरा स्ट्रगल था। फिर आगे जाके फिर कॉलेजेस में पढ़ी, मैं आगे पढ़ी, फिर अब ऐसी तरीके से आगे। तो आपने जैसे आप तो जैसे बॉम्बे में थे, तो हाउ डिड इट कम टू योर माइंड कि वो त्रिची में जाना है, MSW करना है या MPhil करना है, तो ये स्कॉलरशिप वगैरह मिला होगा आपको, लाइक हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज फॉर योरसेल्फ? सबसे बड़ी चुनौती आज के डेट पे यही है। अच्छे खासे युवा हैं लेकिन अब उनको लगता है कि आगे कैसे जाएं, कहाँ जाएं। कई लोग कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये चैलेंज उनके पास में रहता है कि किस तरह से, मतलब वो एक समझ नहीं आता कि क्या करें। एक ऐसा इस मोड पे होते हैं, यानी कि आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर रियली, वो दिमाग में नहीं होता क्या करें, क्योंकि घर की भी सपोर्ट नहीं होती है, ये बात भी है। तो एक चीज तो मेरी समझ में आया आपकी लाइफ से, जो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि अगर पेरेंट्स का जो सॉलिड सपोर्ट होना चाहिए, और एक घर में जो अपना जो चेंज होता है, चेंज घर से ही होना चाहिए ना। हम लोग चेंज दूसरे की जगह से देखते हैं, चेंज अगर हमारे अंदर से आ जाएगा तो शायद पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो जैसे आप बदल रहे हैं, आप बदले, तो आई थिंक आप बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से कि कैसे कैसे क्या करें युवा लोग हमारे जो आज के। मुझे अभी भी याद है 10वीं जब मेरा हो गया था, मैं मराठी मीडियम से थी, 10वीं जब मेरा हो गया था तब जब हम 4 में रहते थे, 10x12 का बहुत छोटा घर था, 10x12 का घर, उसमें ही एक छोटा सा बाहर वाला, उसमें खॉट वगैरह, ये अंदर किचन, उसमें भी नहाने के लिए, और टॉयलेट बाथरूम वगैरह ऐसा बाहर था। तो हमारे बाजू में ब्राह्मण रहता था। हाँ, वो तमिल ब्राह्मण था। ओह बाप रे, ज्यादा खतरनाक है। तो वो तमिल ब्राह्मण था। तब मतलब मेरे सामने वो जो एक ताई करके एक बड़ी एक रहती थी, तो वो मेरे पिताजी बोलते थे कि 10th के बाद तुम नॉर्मल स्कूल में जाओ, 12th वहां पे करो, और तुम अच्छे कॉलेज में मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्योंकि हमारे घर में ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था कि मेरी बुआ की एक लड़की है, तो वो कॉलेज में गई थी, तो उसका कहीं किसके साथ प्यार हो गया, तो उसका हाँ, तो उसका अफेक्ट तो उसका अफेक्ट उसके एजुकेशन पे हुआ। तो मेरे पिताजी का डर ये था कि ये बड़े कॉलेज में चली जाएगी तो ये भी प्यार के चक्कर में गिर जाएगी, फिर उसका एजुकेशन। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप। हाँ, और ये बात ये वोकल होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का अक्सर बाहर क्यों नहीं भेजते, इस डर से बाहर नहीं भेजते। ये पॉइंट जो है मैंने अच्छे से इलाबरेट किया है मेरे पीएचडी के थीसिस में। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉब्लम सामने रखोगे नहीं, तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? छुप के शर्मा के कितने दिन रहोगे आप? बिल्कुल। कभी ना कभी उसको खुल के बोलो, ये ऐसा है। तो इसलिए मेरे पिताजी का कहना ये था कि इसको तो कॉलेज में नहीं डालना है, ये पहला था। अच्छा। दूसरी बात ये थी, फिर क्या हुआ, 10th के बाद मैं रोते बैठी, मैं बोली नहीं, मुझे जाना है तो कॉलेज में जाना है। मेरे पिताजी बोले कि अगर तुम्हें कॉलेज में जाना है तो 12th वाला जो छोटा मोटा जो रहता है उधर जाओ, मैं कॉलेज में नहीं जाना है। और मैंने बहुत ठान ली थी, मुझे जाना है तो अच्छे कॉलेज में ही जाना है।
तो फिर मेरी माँ, मैं खाना नहीं खाया था उस दिन, 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी मैं। अच्छा। तो फिर मेरी माँ वहां पे गई, कहाँ पे, वो जो छोटा वाला कॉलेज है जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक रहता है, वो स्कूल था। तो वहां पे गई तो उन्होंने मेरे परसेंटेज देखे, तो बोले इसके परसेंटेज तो अच्छे हैं, और यहाँ पे क्यों आप डाल रहे हैं, यहाँ पे तो जो है वो पूरा रिपीटर वाले आते हैं, मतलब जिन्होंने फेल हुए हैं, अच्छा। डबल डबल किया है, वो बच्चे आते हैं, आप इसको क्यों भेज रहे हैं। तो मेरी माँ ने कुछ बोली नहीं, वो रिटर्न आई, अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर मेरे पिताजी को समझ में आया कि हाँ, तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं जो भी करूंगी मुझे कॉलेज में ही करना है। तो फिर मेरे पिताजी फिर वो मेरे से ये अश्योरेंस लेने लगे कि तुम तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट करोगी, ये चक्कर में नहीं गिरोगी। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ, मैं मेरी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, मैं बाकी ये सारी चीजें नहीं करूंगी। फिर मैंने जो एडमिशन लिया था CHM कॉलेज, चांदीबाई हिम्मतमल मनशुकानी, उल्लासनगर का अच्छा कॉलेज माना जाता है, अच्छा। नजदीक है हमारे यहाँ पे, मतलब ट्रेन से ही जाना है, लेकिन तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का था मेरा, मैंने अच्छा। इंग्लिश मीडियम आर्ट्स लिया। ओके। वो भी कैसे, तभी सभी कॉलेजेस बंद हुए, एडमिशन बंद हुए, और जब मैं और मेरे पिताजी गए तो बोले कि एडमिशन अभी नहीं है, एडमिशन क्लोज हो गए, तो अभी करने का क्या। तो फिर किसी ने उनको बोला कि मंत्रालय में जाओ, कोई तो आपको चिट्ठी लिख के देगा, अच्छा। और वो चिट्ठी इनको दिखाओ और फिर वो आपको देंगे। उन्होंने अच्छा। कुछ मतलब सिपाही वगैरह को पैसे भी दिए थे, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। तो फिर वो मंत्रालय से गए, रामदेव आठवले जी ने वो वो चिट्ठी दी थी, और अच्छा। उसके कारण मुझे वो, भले कितने भी अच्छे परसेंटेज होने के कारण कुछ, क्योंकि मैं एडमिशन क्लोज हुआ था उसके जी। बाद में गई थी, तो उन्होंने बोला हाँ। कि कहाँ पे लेना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो बोले नहीं आर्ट्स में लेना है। बोला कि हाँ, वो तो अगर आप पहले आते तो ऐसे भी मिल जाता। अच्छा। तो फिर उन्होंने कैसे कैसे तो करके हम अंदर चले गए, और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने कभी कॉलेज देखा नहीं था। तो पहले दिन मतलब वो गेट था, गेट के मैं वहां खड़ी रही, अच्छा। 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 अंदर लेकिन नहीं घुस। अंदर नहीं गई, डर था। हाँ, सही बात। वो डर था कि मैं जाऊं कैसे, उतना क्योंकि बड़े। वो एक रहता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आते है, मराठी जी मीडियम की जी हूँ, जी। और मुझे तो इंग्लिश मीडियम में क्योंकि मेरी वो ताई है, वो बोली थी तो इंग्लिश मीडियम में लेना। तो बोले अच्छा। तो हाँ, वो उसके पहले वाला इंसिडेंस है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में वो लिया। तो जो ब्राह्मण जो है, वो नेबर हमारे, वो आए रात को 10 बजे, हम अच्छा। सब सोए थे, उठ गए। वो बोले कि आपने कैसे गलती की है, ये मराठी मीडियम की है, उसको इंग्लिश मीडियम में क्यों आपने डाला, इसको हम्म। कैसे जमेगा। उसने हम्म। पूरे अभी तक 10th तक मराठी मीडियम में किया, एक ही सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश का, बाकी तो कुछ रहता नहीं है। जी जी। तो अब ये कैसे पिकअप करेगी, ये फेल हो जाएगी, फिर अच्छा। उसको फिर हाँ, फिर रिपीट उसको होना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी वो सीन याद है, मेरे पिताजी, क्योंकि हम नीचे सोते थे, तो नीचे उठे, वो वहां पे बैठे, और मैं एक कोने में ऐसे सब सुन रही उनका, क्या क्या, मैं ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे बैठी थी, मैं सब सुन रही थी उनका कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पिताजी बोल रहे, देख क्या बोलते हैं, देखो इनके सब बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उनके बच्चे, और तुम तो मराठी मीडियम में पढ़ी, तुम कैसे पिकअप करोगी, कैसे, क्योंकि और बाकी की इंजीनियरिंग वगैरह में तो कैसे मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह रहता है, लेकिन आर्ट्स में पूरा सब्जेक्टिव रहता है, उसमें लिखना बहुत पड़ता है, उसमें रीडिंग बहुत रहता है, तुम लिख कैसे पाओगी, तुम तो एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकती हो मराठी इंग्लिश में वगैरह, ऐसे सब सारी चीजें। तो मैंने बोला मैं करूंगी और जरूर करूंगी। तो फिर बहुत सारा लेक्चर हुआ, तो वो बोले कि ठीक है, और मैंने भी बोला कि मैं करके लूंगी। और फिर मैं दूसरे दिन जब गई, मैं कॉलेज में गई नहीं, बाहर ही खड़ी रही, और डर के मारे बाहर खड़ी रही, और क्योंकि कैसे क्या ड्रेस पहन के जाना है, क्योंकि बाल ऐसे छोटी, और मतलब बहुत ही, क्योंकि बहुत छोटे घर से, किसी का एजुकेशन नहीं, और मेरे घर में मैं पहली लड़की हूँ, लड़कों में से और लड़कियों में से मैं पहली लड़की पूरे खानदान में जिसने 10th पास किया, पहली बार, अरे बाप। अच्छा। पहली बार 10th पास किया। तो मैं वहां पे खड़ी रही, और फिर चली गई। तो फिर मेरे पिताजी बोले, गई थी कॉलेज में, मैंने बोला हाँ, कैसा लगा, अच्छा लगा, बताया नहीं कि मैं गई नहीं अंदर। ओह वाह। अच्छा।
बाहर ही खड़ी थी, गेट के बाहर ही खड़ी थी, बताया नहीं कि मैं अंदर चली गई। फिर उनको थोड़ा समझ में आया क्योंकि मैं खुल के नहीं रह रही थी। तो फिर सामने वाली एक लड़की थी, उसका रिपीट मतलब उसका 10th बार बार फेल होके उसको पास हुई थी। तो उन्होंने बोला कि उसके साथ इसको भी भेजो तो इसको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो उसको भी फिर उन्होंने लेटर लिया और दोनों को भेजा। उसके बाद में उसके साथ थी, तब मैं इंटर गई। आप में अंदर गई, उसके बाद में थोड़ा कंफर्टेबल हुई, नहीं तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जाने का। तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन वो ग्रेजुएशन में भी स्कॉलरशिप मिलता था मुझे, लेकिन पैसा इतना ज्यादा नहीं भरा था, लेकिन जो भी है स्कॉलरशिप मिलता था। फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पिताजी का ये मानना था कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, आर्गुमेंट अच्छा कर सकती हूँ, तो तुम लॉ करो। लेकिन मेरे फ्रेंड जो है, मेरी एक फ्रेंड है वो भी ब्राह्मीण है, तो उसको MSW, हाँ MSW करना, मतलब उसने बोला था कि MSW करिए। मुझे कुछ मालूम नहीं था, जिस तरीके से आपने बोला मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि 10th के बाद क्या करते हैं, 12th के बाद क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में है, कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि जिस चाल में रही हूँ वो पूरे लेस एजुकेटेड, कम एजुकेटेड, और उसमें से भी जो भी एजुकेशन वाले जैसे नियर बाय एरिया में एक या दो ही लोग पढ़ते थे, कोई पढ़ने वाला था नहीं, तो कौन बताएगा? बताने वाला कोई नहीं है, सही बात। बताने वाला कोई नहीं था, तो उसके कारण उसने फॉर्म भरा, इसलिए फिर मैंने भी फॉर्म भरा। लेकिन तभी टाटा इंस्टीट्यूट का मुझे फॉर्म मैंने भरा था, लेकिन तभी मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन मुझे तभी वैल्यू नहीं था कि टाटा इंस्टीट्यूट। तो ये इग्नोरेंस था। भले हम वो बोलते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहे, लेकिन ये सब भूल-भुलैया है, सब दिखावा है कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहे, लेकिन जो जिस कल्चर में या जिस एरिया दायरा रहता, सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो दायरा हाँ। तो but you went to Trichy for your MPhil. हाँ, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने पुणे में हुआ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने वहां पे भरा था, तो इसलिए मैंने भी भरा। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो क्योंकि उसको थोड़ा बहुत आइडिया था, तो उसके साथ साथ मैं भी गई, तो मेरा मास्टर्स हुआ। मास्टर्स के बाद मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, जॉब वगैरह किया, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये अपनी बस की बात नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि उसमें टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, और अपने पास दोनों भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में और भी बहुत सारे पढ़ने वाले थे। मेरी 2 नंबर की सिस्टर, 3 नंबर की सिस्टर, मेरा भाई, अकेले मेरे पिताजी क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने वो ये नहीं किया। तो त्रिची में जाना, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे पोस्टिंग हुए थे, इसलिए मैं उनके साथ वहाँ गई। अच्छा। अभी मैंने कहा कि त्रिची, आप यहाँ से अचानक से बम्बई से त्रिची जा करके आपने एमफिल किया। तो जो एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे को नजर आ रही है, हाउ डू यू थिंक कि जो बीइंग ए बुद्धिस्ट, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है उसने परिवर्तन किया या प्रोग्रेसिव वैल्यू लाए? क्योंकि जो ज्यादातर कम्युनिटी है, जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉट ऑल हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो एक सुपरस्टिशन बहुत है कम्युनिटी के अंदर, और जो परंपरागत चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स, शादी से लेकर के सब चीजों का, वो कितना असर करता है हमारे को। बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं कि अब मैं वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि उसने जो है कहीं ऐसा नहीं कि हमको रुका दिया पूरा डेवलपमेंट मेंटल या ये बात सच है। देखिए, अगर ऐसे भी अभी भी लोग हैं जिन्होंने एक्स महाशय ये कन्वर्टेड बुद्धिस्ट बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में भगवान वगैरह मिलेंगे, कुछ रूढ़ी रिवाज भी मिलेंगे, कुछ परंपराएं भी मिलेंगी, कुछ अंधश्रद्धा भी मिलेगी, और या कुछ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के भी मिलेंगे।
और उसके साथ अलग भी समाज के जो लोग हैं उनके घर में भी मिलेंगे। लेकिन मेरी माँ जो है थोड़ा भगवान को मानने वाली या भगवान को पूजने वाली, अभी भी मुझे याद है कि मेरे भी माँ जो हमारे घर में वो एक माला जैसा रहता था, वो लकड़ी का वो डाला था। और मेरे पिताजी वो जो क्या है ना वो कौन सी देवी आती है तो 7 दिन उसका व्रत रखते हैं, नवरात्रि का वो नारल वगैरह महाराष्ट्र में रहता है, वो डाल के फिर पोथी पढ़ना पड़ता है वगैरह, ये सारी चीजें करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी अगेंस्ट है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म लिया था, अम्बेडकर पढ़ रहे थे, वो ज्योतिराव फुले पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजें नहीं मानते थे। लेकिन मेरी माँ थोड़ा बहुत मानती थी। वो एक बार माले पे हम कर रहे थे उसको, क्योंकि वो तो पहली कक्षा में ही उसको ड्रॉप आउट किया उसके माँ ने, क्योंकि उसके पिताजी जल्दी ही मतलब डेथ हुई थी उनकी, और फिर उनके छोटे भाई को संभालने वाला कोई नहीं था। फिर माँ तो खेतों में काम करने जाती थी, तो वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ जैसे ही थी, तो हमसे वो पढ़वाती थी। तो जब मेरे पिताजी आए, उन्होंने देखा ये पूरा फेंक दिया था। तो इस तरीके से वो बहुत रिवॉल्यूशनरी टाइप के थे कि घर में अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत फेंकना है। गणपति का अगर कुछ दिखा तो फेंको, देवी का कुछ देखा तो फेंको। वो बोलते जो होगा वो मुझे होगा ना, नहीं क्या बोलते कि देवी का फेंका या गणपति का फेंका तो आपको ये हो जाएगा, कुछ तो बाधा आएगी आपके ऊपर। लेकिन आज तक उनको कुछ बाधा नहीं आई। तो इस तरीके का माइंडसेट घर में था, इसलिए हमने कभी भगवान को पूजा नहीं, या कभी हमने भगवान ये कंसेप्ट ही हमने कभी बचपन से ही देखा नहीं। बेसिकली जो लोग मतलब मेरे को तो पूजने में भी कोई दिक्कत नहीं, जो खर्चा लोग इस पे करते हैं बहुत ज्यादा, जो ट्रेडिशन के नाम पे, वो रुक गया आपका मतलब बेसिकली, रादर देन इन्वेस्टिंग इन गॉड्स एंड गॉडेसेस, आप पे उसका ज्यादा असर पड़ा कि आपके ऊपर ज्यादा ध्यान आया या और आपके भाई बहनों पे। यस 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 यस, और ज्यादा करके मोर ऑफ रैशनल माइंडसेट। जैसे 7th स्टैंडर्ड में थी तभी उन्होंने हमें विपश्यना में डाला। तो विपश्यना, हाँ, तो विपश्यना 7th स्टैंडर्ड से ही, बचपन से, जैसे 3 दिन का विपश्यना रहता था, तो 3 दिन के विपश्यने में मतलब एवरी 6 मंथ्स में हम चले जाते थे वहां पे। तो एक ये था, तो हमें सब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे क्यों जा रहे हो, क्या है, क्या मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग करते हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तो मेरे पिताजी तभी मुझे बोलते थे इसका जो इम्पोर्टेंस है तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, इसका इम्पोर्टेंस जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे लाइफ में जब बहुत सारी चीजें, कठिनाइयां, प्रायोरिटी आएगी, तब उसका इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ में आएगा। So it's very good because most of the people who are in tradition community में खास करके superstition है, tradition है, जैसा आपने कहा alcoholism भी है, बहुत सी चीजें हैं। तो I think this, at least for the youngster, this is a model. If we want to really progress, we have to start from our home, and also follow a rational path, not to get trapped in the so-called tradition and festivals और उसमें खर्चा करने जो लोग करते हैं। तो ये जो आपने जैसे त्रिची में, क्या एक सवाल बार बार लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये ऑफ्टन इट कम्स कि जो जैसे आपने कहा कि उनको और जगह जाना चाहिए, लेकिन अभी तो सब समुदाय तो ऐसा कंडीशन में नहीं है कि उसके पास इतने ऑप्शन आसानी से तो होते नहीं। तो what would you suggest, like people ask for कि भाई जैसे एजुकेशन में क्या होना चाहिए, आपके रिकमेंडेशन देख रहा था, एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, कुछ जॉब्स में कुछ आना चाहिए, तो किस तरह से आप रेकमेंड करेंगे टू द गवर्नमेंट? देखिए देयर, आई थिंक देयर आर 2 काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, कि एक तो कम्युनिटी के अंदर क्या काम होना चाहिए, और दूसरा व्हाट शुड अदर डू, और तीसरा व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू। तो तीनों पे मैं आपकी ओपिनियन चाहूंगा। व्हाट वर्क should be done to uplift the community within the community, जो रिफॉर्म्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं कम्युनिटी के रिफॉर्म्स, whether superstition, religion, और दूसरा जो है what can other Ambedkarite and other forces, जिन पे भी अक्सर ये चार्जेस लगते हैं कि they don't go into the खास करके man scavenging communities में, और थर्ड what should the government do, the 3 aspect पे आप बताइए। या
पहली बात तो ये है, जिस तरीके से अभी मोस्टली जो मुख्य कास्ट में मैंने देखा है, उन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया है कि जो भी बच्चे 10th पास हो जाते हैं, 12th पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो उनको फेलिसिटेशन करते हैं पब्लिक में। That is good. तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए ऑर्गेनाइज किया है जो जो जिनका एजुकेशन हुआ है उनको भी अच्छा लगता है कि यस समथिंग आई हैव डन, और जो नए मतलब देख रहे हैं उनको भी लगता है कि मुझे भी ये स्टेज पे जाना है और मुझे भी यही प्राइज लेना है एक दिन। तो ये कैसा है, दोनों तरीके से फिर उनका एक मोटिवेशन लेवल या उनका एस्पिरेशन लेवल बढ़ता है। ये रुखी कास्ट में यहाँ पे तो एटलीस्ट शुरू किया है, ठीक है। अभी अगर इस कम्युनिटी के साथ आपको काम करना है तो बहुत इंटेंस काम करना है, सुपरफिशियल काम करके होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे उनके माइंडसेट बहुत ये हो गए हैं, ये सुपरफिशियल वाला काम होने ही नहीं वाला है। यहाँ पे बहुत इंटेंस काम शुरू करना है। तो इस तरीके से जैसे ये पहला जो जनरेशन है जो हायर एजुकेटेड हुआ है, इन लोगों को कैच होल्ड करके और ये काम करने के लिए तैयार है। मैं अगर इनका एक नेटवर्क बनाया जाए या उनको एक अपॉर्चुनिटी दे, और ये लोग ऑलरेडी अपने अपने एरिया में अच्छे हैं, उनको थोड़ा सा और मार्गदर्शन चाहिए, वो अपने अपने एरिया में करना है। और मैंने इस तरीके से उनको सवाल भी पूछा था कि आप आपके समाज के लिए क्या करना चाहते, तो सभी लोगों का पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वो बोले कि हमने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन मैंने बोला आप 2 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, मैं बैठ रही हूँ, सोचो, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है। वो बोले कि मैडम हमने कभी सोचा नहीं। मैंने बोला इसलिए मैं सोचने के लिए आपको मजबूर कर रही हूँ। बिल्कुल, टाइम की चिंता मत करो, मैं पूरा दिन भी यहाँ पे बैठ सकती हूँ आपके लिए, लेकिन आप सोचो, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचोगे कोई आने वाला नहीं है आपको समाज के बदलने के लिए। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है आपके समाज की लोगों को चेंज करने के लिए, ना ही गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैसे चेंज करना है। और इसके बारे में भले आपने लाइफ में कभी अभी तक सोचा नहीं है, या आगे शायद आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मौका है मैं आपको दे रही हूँ, आप सोचो। उन्होंने लिटरली उसके बारे में सोचा और उन्होंने अच्छे मुझे मतलब ऑप्शंस दिए कि किस तरीके से हमने या किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका पहला यही था कि मैडम अभी हमने पढ़ाई की है, उनको और भी पढ़ाई करना है, एक अच्छी पोजीशन पे जाना है। उसके बाद जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैं बाहर सीख के आऊंगा, फिर मैं मेरा बिजनेस चालू करूंगा और मोस्टली मैं अपने लोगों को वहां पे प्रोफेशन में दूंगा, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ये प्रोफेशन में नहीं जाए। दूसरा लोग ये बोले कि हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। तीसरी बात बोले कि हमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो हर एक ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है कि किस तरीके से वो अपने समाज को आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप पकड़ो जो लिटरली वो समाज से आए हुए हैं और जो हायर एजुकेशन उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने उनको मजबूर किया था। इसलिए वो बोले कि मैडम आज तक हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया इस तरीके से सवाल लेके, आप पहली बार जो हमारे साथ इस तरीके से सवाल पूछ रही है कि क्या करेंगे, बोलो हम आपके साथ हैं। ये अभी तक कोई नहीं आया। लोग क्योंकि आउटसाइड होके जाते हैं ना, आउटसाइडर एज ए सब्जेक्ट जैसे होता है ना, इस रिसर्च करने के लिए एज ए सब्जेक्ट गए और वापस चले गए कि बता के कि ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे इंटेंसली वर्क करने की जरूरत है विद हार्ट टू हार्ट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग का क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रीचिंग लोग करते हैं, दे स्टार्ट टीचिंग, अरे तुम ऐसे हो, वो खराब हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, ये जॉब मत करो, अम्बेडकर ने ये बोला, हाँ जी, ने ये बोला, चलो निकलो। तो बजाय इसके कि साथ जो इमोशनल जो चीज है कि साथ में लग करके वो कम काम हुआ है और उसको बहुत करने की जरूरत है, मुझे लगता है। हाँ, दूसरी बात, एक लड़का जो मतलब मैंने उसके साथ, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के उसने आया वो, और हमारा कन्वर्सेशन हो गया, फिर वो घर के बाहर आया,
वो इतना मजबूर उसके चेहरे से दिख रहा था कि मैडम देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन वो गाड़ियां साफ करने का काम करता है, वो ये कभी ड्राइविंग का काम करता है। तो बोलते हैं कि मैडम हमारा जो एजुकेशन है उस लेवल का हमें जॉब नहीं मिला या उस लेवल का हमारे जो बाकी के जो फ्रेंड जाते हैं उस तरीके से हम काम नहीं कर रहे, हमारे लिए आप कुछ तो करो। और ये खुद बोलते हैं तो हमें करना चाहिए, उनकी आवाज हमें सुननी चाहिए कि हम वो बोल रहे हैं हमारे लिए कुछ करो, आप हमारे साथ आओ, तो उनको ले लो। फिर दूसरी बात, अगर जो है आप बाहर के, यही अम्बेडकर जो बोल रहे हैं अलग एससी के समाज के हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली इंटेंसिवली जाके उनके साथ ये सारी चीजें करने पड़ेंगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है उनको कुछ इंटरेस्ट है ये समाज में कुछ चेंज लाने की, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने अभी तक पॉलिसीज बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने फोकस किया है, तो एक भी पॉलिसी आप देखिए, एक भी पॉलिसी उनके बच्चों के ऊपर नहीं है। सिर्फ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उन्होंने दिया है, वो भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या 700 रुपए 750 रुपए क्या मिलेगा उनको, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हर जगह नहीं यार, वो भी लिमिटेशन है उनकी बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों की मतलब इतने लोगों तक पहुंचती नहीं हो। हाँ, 2 ही बच्चे चाहिए। अभी ये समाज में क्या है, 2 बच्चे मिलेंगे आपको, सभी बच्चे मिलेंगे, और उनको प्रॉब्लम क्या है, 8 अगर 2 3 4 बच्चे हैं तो ले लो ना, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, आपको उनको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। एकदम सोफिस्टिकेटेड वाला हम 2 हमारे 2 कहाँ मिलेंगे आपको, वो तो नहीं होता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। हाँ, तो गवर्नमेंट ने अभी तक उनके बच्चों के ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर ऐसा इंटेंसिव प्रोग्राम मैंने नहीं देखा है कि अभी उनको स्ट्रैटेजिकली ये सब करना पड़ेगा। तो जो भी है वो हम प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन काम तो जो भी है, जैसे आप हम लोग हैं जो अभी हम सोच विचार करके हम बोल रहे हैं, तो जब हम इकट्ठा आएंगे, उनके जो हायर एजुकेटेड पर्सन जो है उनको, उनके साथ हम जब काम शुरू करेंगे तो ही ये मुझे लगता है कहीं पे तो वे फॉरवर्ड हो सकता है। क्योंकि जो अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेड विनर है, तो और उनको छोड़ के भी क्या करेंगे, अभी ज्यादा 20 साल है, उसके बाद तो छोड़ेंगे। लेकिन मुझे मानना ये है कि एटलीस्ट जो आगे वाला जनरेशन उनको तो नहीं जाने दो, नहीं हमारे पास में जैसे अब ये बहुत सारा ये डिस्कशन में ये चीजें आती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जब बात करते हैं, कल भी मैं बात कर रहा था, तो लोग का एक तो ये होता है कि उनको लगता है साथियों को कि हमको अलग तरह रखा गया है विद इन दलित मूवमेंट भी, आउटसाइड वाला तो वैसे ही हमको तिरस्कृत करता है, विद इन दलित मूवमेंट भी हमारे को कोई पूछता नहीं है। तो वो एक कह रहे हैं कि हमको, जैसे आपने कहा कि भाई सैनिटेशन वर्क में सवर्ण लोग आना चाहिए, ब्राह्मण भी आना चाहिए, तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम आने देते हैं, तो बोले हमको भी नॉन सैनिटेशन वर्क में आप रिजर्वेशन दो। हाँ, बराबर है। नॉन सैनिटेशन वर्क जो भी है ऊपर से लेके नीचे तक, क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी टीचर से लेकर के और नीचे तक जो भी है, ऑफिस असिस्टेंट से लेके, और ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। देयर आर नाउ PhDs, देयर आर नाउ MPhils, देयर आर नाउ MAs, BA तो बहुत हो गए हैं। तो कम से कम जो लेवल पे जहां हो सकता है उसको नॉन सैनिटरी वर्क में तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो मानती हूँ ये कि रिजर्वेशन देना ही है, उसके साथ साथ उनको स्कूल लेवल पे उनको इस तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल में डालो, उनके बच्चों को, जैसे अंबानी का स्कूल चल रहा है या फिर ऐसे जो स्कूल चल रहे हैं वहां पे रेसिडेंशियल स्कूल में डालो, ताकि जैसे नवो विद्यालय है या सैनिक स्कूल है, उनको रिजर्वेशन दे दो, वहां पे डालो, क्योंकि उनको उनके घर में वो कल्चर नहीं मिलता है, लेकिन यही बच्चे वहां जाएंगे तो उनको वहां पे वो एटमॉस्फेयर मिलेगा। बिल्कुल, और ये बच्चे अच्छे ये आएंगे। तो ये डायलॉग जो है, ये डायलॉग इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक अच्छे स्कूल्स रेजिडेंशियल हो जिसपे उनको डाला जाए। जैसे नवोदय विद्यालय में भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेस अलग हो, हॉस्टल बने या कुछ बने, क्योंकि घर से जैसे आपने कहा नॉट एवरी फैमिली हैज, एक कमरा भी नहीं होता है, और वो भी किस तरह से रह रहे हैं लोग, तो वो घर से तो नहीं हो सकता। तो जो प्राइमरी लेवल से ही आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा टारगेट तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो फिर क्या होता है, जब वो 10वीं तक पहुंच जाता है,
15 साल का हो जाता है तब तक तो उसका खराब हो जाता ना स्टार्टिंग। हाँ हाँ हाँ। जो और रूट उसमें है से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। बहुत कम लोग जैसे अभी 11 सफाई कर्मचारी स्लम्स एरिया है, उसमें से हार्डली मुझे 38 बच्चे मिले जो हायर एजुकेशन में है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रहेंगे, 45 तक रहेंगे, उसके ऊपर तो नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो तो मतलब 11, हाँ 11 कम, ये एक स्लम एरिया में इस पकड़ लो 1000 का या 1500 का क्राउड रहेगा, उसमें से आप आपके यहाँ पे सिर्फ 38 या 45 या ज्यादा से 50, उसके ऊपर तो नहीं रहेंगे बच्चे। तो मैं बहुत कम जनरेशन वाला जो है जा रहा है ना यहाँ पे हायर एजुकेशन में, तो उनको आप अच्छे से जगह पे प्लेस कर ही सकते हो। आपका तो बहुत ज्यादा वर्क जो है, आपकी रिसर्च जो है वो सफाई कर्मचारी महिलाओं पे है। तो क्या महिलाओं की स्थिति को आपने पाया और किस तरह से उनकी परेशानियां हैं? और देखिए अभी जिस तरीके से महिला अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे पेट्रियार्की लागू होता है, यहाँ बहुत बहुत पे कास्ट जबरदस्त। सिस्टम लागू, हाँ हाँ, या यहाँ पे कास्ट सिस्टम लागू होता है, यहाँ पे पेट्रियार्की लागू होता है। तो भले आप ये ऑक्यूपेशन में हो नहीं रहो, तो ऑलरेडी आपका तो शोषण होने ही वाला है, क्योंकि सोशल सिस्टम ने आपको उस तरीके से रखा ही है। अगर उसमें से भी आप महिला, उसमें से भी आप ये काम में है तो बहुत ही ज्यादा है। उसमें भी आप फाइनेंशियली आप इनस्टेबल हो या आपके पास स्टेबिलिटी नहीं तो और भी प्रॉब्लम है। उसमें आप एजुकेशन नहीं में कमी हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें ना उससे बहुत ज्यादा पतन या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटाइज माहौल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा एजुकेशन है, आप थोड़ा सा आवाज उठाएंगे, आपके पास थोड़ा अगर पैसा है तो आप बोलेंगे चल मैं नहीं करती, मैं दूसरा करती हूँ, कि या मैं मेरे घर में सब कमाने वाले हैं, मैं काम नहीं करूंगी, मैं घर में बैठूंगी। लेकिन जब आपका एजुकेशन भी अच्छा नहीं है, आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी है, तो आपका कितना भी टॉर्चर हो, कितना भी शोषण हो, वो बाई को करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें ये महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होती है। और यहाँ पे जहाँ पे देखा है ये महिलाएं ये प्रोफेशन में वारसा हक के कारण ज्यादा आती है। वारस हक जो बोलते हैं ना, हाँ, कि हाँ, हस्बैंड मर गया है, ससुर के काम हाँ, में या सास के काम में, या फिर कोई और भी थे देवर का काम, ये तो जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के कारण बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन ज्यादा महिलाएं वारस हक के कारण है। तो वो क्या है, सेकेंडरी पोजीशन पे आई हुई महिलाएं हैं। तो ये मजबूरी में आई हुई महिलाएं, ये विलिंगनेस से आई हुई महिलाएं ये नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया इसलिए वो यहाँ पे आई, या फिर वहां पे काम वारस हक का है। इसलिए जैसे वारस हक का मोस्टली देखा है कि मैरिड महिलाएं ज्यादा है, क्योंकि हस्बैंड लड़कियों की को डेथ नहीं में। लगाते वो। हाँ, वो तो वाइफ को लगाते हैं ना, हाँ वाइफ को, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि बहू है वो चली या जाएगी फिर कहीं, वाइफ है, हाँ बेटी तो चली ये जाएगी। तो क्या पराया धन है, वो जाएगी तो पैसा उसको मिल जाएगा, तो मैं उसको क्यों लगा, तो वो जाएगी, उसका सास ससुर का जो रहेगा वो उसके का। हाँ, तो वहां पे है जो ऑलरेडी घर में पतन तो होता ही है, इकोनॉमिकल पतन है, और उसको ऑलरेडी इग्नोरेंट ही क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो लेडी है, इसको ज्यादा समझ में नहीं आता, इसको साइड में रखो। या मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है इवन एजुकेटेड बच्चों में। मैंने जब उनसे बात करती थी तो उनके घर में बहन थी, वो 12th या 10वीं पास या 12th पास, 12th फेल ऐसा देती थी। तो मैंने पूछती थी कि तू अभी इतना बड़ा अच्छा सा एजुकेशन किया है, ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन अभी तेरा हो जाएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसको कुछ कंसर्न मतलब उसको कुछ गाइडेंस क्यों नहीं करता। मैडम वो उसका दिमाग नहीं चलता, एक वर्ड उसका दिमाग नहीं चलता। ये जो लाइन है मेरे दिमाग में इतना बैठ गई है, इसका दिमाग कैसे चलेगा आप बताइए। जब माँ भी काम करने के लिए चली जाएगी, पिताजी भी काम करने के लिए चली जाएगी, और माँ घर में भी रहेगी तो भी कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा करके ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि लड़कियों ने काम कर, जेंडर है ना, तो घर घर का काम कौन करे, हाँ, वो तो तो जेंडर यही है। करे।
तो घर का हमारे यहाँ पे तो कैसा, बहुत सारी चीजें इजी है, जैसे पानी इजी मिलता है अपने यहाँ पे, टॉयलेट बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पे इजी वगैरह है, यहाँ पे बाकी की सुविधाएं इजी है, उनके यहाँ पे नहीं ऐसा है, पानी बाहर से लाना पड़ता है, बाकी की चीजें घर में नहीं रहते, बहुत बर्तन साफ करने से लेके कपड़े धोने से लेके ये सारी चीजें है ना, उसमें आपका फिजिकल लेबर और आपका टाइम बहुत चला जाता है। बचपन से वो लड़की को इस काम में इन्वॉल्व करते हैं तो उसको टाइम कहाँ पे मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा तो वो थक जाती है या फिर उसको इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि थकने के बाद तुम काहे का पढ़ाई करोगे और कौन से स्कूल में चले जाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है या फेल होने का रेट ज्यादा है। इसके कारण नहीं कि उनका दिमाग नहीं चलता, इसके कारण कि उनका दिमाग उन्होंने उस तरीके के वहां पे शिफ्ट किया, उनको भी वहां पे उतना उस तरीके का फ्रीडम दे दो, उस तरीके का आप माहौल दे दो कि तुम काम मत करो या कुछ नहीं करो, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, खाना है, या जो घर का काम है सब लोग मिलके बांट के, ये भी उतना ही करेंगे, ये इतना काम करेंगे, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क कहाँ होता है, जो घर का काम है सिर्फ उसको ही करना है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी, ये तो यंग जनरेशन के ऊपर ये है। अभी जो ओल्ड जनरेशन है तो ऑलरेडी वही ट्रेडिशनल माइंडसेट से कि मैं तो औरत हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो ये तो समाज ने लाया गया हुआ उनके ऊपर जो है कि मैं एक औरत हूँ, मुझे नहीं आता है। ये किसने बताया आपको, ये किसने बताया कि तुम औरत हो तुम्हें नहीं आता है? जेंडर का और आना और नहीं आने का क्या रिलेशन है? लेकिन ये समाज ने जिस तरीके से औरतों को देखा है और फिर उसके बाद काम के ऊपर भी उनका बहुत पतन होता है, घर में भी इस तरीके से खुद भी इस तरीके का अपने बारे में सोचते हैं और वही रिफ्लेक्ट उनके घर के विचारों में भी होता है। तो मतलब कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद हमारे एक बार मैंने एक जगह पे जो है 10-12 लड़कियों को खड़ा किया एक मंच पे, तब समुदाय का मीटिंग हो रहा था, तो मैंने मंच पे 10-12 लड़कियों को खड़ा किया था कि वो एक्टिविस्ट थे, और तो हमने कहा कि इसमें से बताइए कि कौन कौन किस कम्युनिटी के होंगे, ऐसी खाली एक उदाहरण के लिए। एक ने कहा कि हमारी कम्युनिटी के, 2-3 लड़कियां अपनी कम्युनिटी की थी और बहुत स्ट्रांग पढ़ी लिखी थी। तो हमने कहा देखिए जैसा आपने बता दिया कि हमारे ये तो सब आपके यहाँ से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये एक भरोसा जो कम्युनिटी के अंदर दिलाने का अब बहुत जरूरी है, क्योंकि खैर निकले लोग, लेकिन अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मतलब विद इन कम्युनिटी जो एंगेज है काम में, उनके अंदर भरोसा जाना जरूरी है कि हमारे बच्चे भी निकले, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, वो भी कोई काम कर सकते हैं। और इसीलिए जो है नॉन सैनिटेशन वर्क में कुछ ना कुछ उनके लिए एश्योरेंस हमको कराना चाहिए। जी, अभी जैसे मैंने हमारा एक व्हाट्सएप का हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है कि मुझे किसी ने अप्रोच किया कि जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब लॉ करना चाहते हैं, तो उनको फ्री में ट्रेनिंग देंगे कि क्या बुक पढ़ना है, कौन से कॉलेज अच्छा है, सीईटी क्या है, नेशनल लेवल के कैट वगैरह कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है एडवोकेट, तो वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पे तीन लड़कियां जो मिली है मुझे, जो ये कास्ट से है, सफाई कर्मचारी के बैकग्राउंड से है, तो उनको अभी हम नर्चर कर रहे हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि यस, और उनके साथ पर्सनली वन वे डायलॉग हो रहा है। वो होना भी चाहिए, लगातार साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी जो जैसे आपके पापा को जो फियर था ना स्कूल कॉलेज जाते समय, वो भी हो जाता है कई बार। तो फिर वो ध्यान हट जाता है, ध्यान भट के जो है फिर वो एक ऐसी दुनिया में चले जाता है कि जो अक्सर हमको लगता है कई बार। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो ये डायलॉग है ये लगातार प्रोसेस में आप जैसे लोग इस पे लगे रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर लोग। यही एक इंसिडेंस में बताती हूँ, मतलब जहाँ पे मैंने कल्याण में जो रिसर्च किया, डेटा लिया, तो वो जो एरिया में स्लम एरिया में ये रुखी कास्ट की जो एक लड़की है, उसने डॉक्टरी की, मतलब एमबीबीएस किया। अच्छा। और जब एमबीबीएस कर रही थी तो किसी दूसरे उसके प्रोफेशन वाले के साथ उसका प्यार हो गया, उसने शादी की। कुछ गलत नहीं हुआ है। वो तो क्या गलत हुआ है?
लेकिन जिस तरीके के समाज की धारणा है कि इसने हमारा नाम डुबो दिया, इसने ये कलंकी है, इसने, अच्छा, अरे बाप, हाँ, तो उसको उसको तो समाज ने बाइकआउट कर ही दिया, उसके फैमिली को भी बाइकआउट किया। अरे तो ये जो डर ये है तो ना, गलत है, फिर ये अलग गलत, इसमें पड़ जाता है। ये तो गलत चीज है, क्योंकि वो अपने कंपटीशन के बात कर रही है, तो डेफिनेटली कोई डॉक्टर बनाया तो अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा, तो डॉक्टर ही ढूंढेगा या अपना समकक्ष ही ढूंढेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी चीजें ना, ये देखो, अगर मैं जो भी ये इनके साथ जब बातचीत कर रहे थे, तो ये क्वाइट नेचुरल है कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई लाइक करता है, अगर आप तो होगा, तो लेकिन खुल के रहो, हाँ करियर ओरिएंटेड रहो कि हाँ, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरे समाज के लिए काम करना है, उसको कुछ देना है। ये साथ साथ ये जो पर्सनल जो तुम्हारा जो लाइकिंग ये तुम्हारे फैमिली पे या तुम्हारे इस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पर्टिकुलरली जब ये आप, तो नेचुरल होने वाला है। हाँ, ये आप समझ मत लो कि आप बाहर जाओगे तो आपको एकदम प्यार नहीं होगा, या अरे किसी लड़के, ये कौन से समाज में जी रहे हैं आप? सही कौन कह से रहे हैं। समाज में जी रहे हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि एक ही चीज जिसमें मेरी समझ में आता है, जो बच्चों को केवल समझाना चाहिए, जो भी है यंगस्टर, हालांकि जब आप हाँ, मिलेंगे, जैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली लड़का लड़की मिलते हैं तो कोई ना कोई तो लाइकिंग शुरू लाइकिंग होता होती है है। या जो कुछ भी है। लेकिन मैं हाँ, केवल एक ही चीज बोलता हूँ उनको कि भाई ये है, सब करो, तुम घूमो फिरो, लेकिन अपने को, अपना जो फोकस्ड है उसको रखे। हाँ, एक बार यू बिकम इंडिपेंडेंट, देन यू डिसाइड। यस, आप यही अपने, है। आपकी जॉब लग जाए या आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाए, तो तब आप कर सकते हो, और करो अपने लाइक माइंडेड को पकड़ करके, जैसा भी आपका, जिसको आप यस, समझते हैं। यस, तो इस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने जल्दी शादी हाँ, करवाया, वो ये तो बहुत भले जल्दी वो करते हैं। अभी ग्रेजुएशन, हाँ, एक लड़की एसवाई थी और उसको अभी मतलब टीवाई में गई कि तुरंत उसका शादी करवाया, ये डर के कारण कि आगे हाँ, अभी तक कुछ किसी के साथ हुआ नहीं, तो आगे जाके उसको कुछ प्यार भी नहीं होना हाँ चाहिए। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, अभी उसको एक बच्चा हुआ। देखिए, मैंने उसका ऑलमोस्ट 2 घंटे बात किए, पूरे 2 घंटे में ऑलमोस्ट कितनी बार उसके और उसके माँ का यही वो एक रिग्रेट था कि मेरा शादी करवाया, मेरा जल्दी शादी करवाया, मुझे अभी जल्दी बच्चा भी हुआ, मुझे बहुत सारी आकांक्षाएं थी, मुझे बहुत सारे होप्स थे मेरे लाइफ के बारे में, मुझे मास्टर्स करना था, मुझे एमबीए करना था, मुझे ये करना था, लेकिन मेरे घर वालों ने नहीं सुना, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अभी क्या वो अपनी जो आशाएं हैं, ये जो एस्पिरेशंस है, वो बोल रही कि अभी मैं मेरे बेटी से करवाऊंगी। तो ये अभी उसकी उम्र ही क्या है, हाँ, वो सही हार्डली बात। उसकी उम्र रहेगी 22 या 23, तो क्या ये 60 एज तक क्या वो यही एस्पिरेशन रहे कि मेरी बेटी क्या करना, हाँ, मेरी बेटी ने ये काम करना? क्यों? अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कम्युनिटी में जब आप मैरिज हो जाता है तो उसके बाद ट्रेडिशन में ज्यादा होते हैं, तो अभी तो एक बच्ची है साल में, दो साल में दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, और कोई कंट्रोल तो होता नहीं, हाँ, बिकॉज इट्स नहीं, ऑल्सो मेल आजकल के डोमिनेटेड। नहीं, नहीं, आजकल की जनरेशन में भले आपको एक बच्चा हो, लेकिन पूरा लाइफ मतलब आपका माहौल जो है ना, आपका माइंडसेट या आपका जो वर्कफोर्स जो है ना, पूरा बदल जाता है। मतलब लड़कियों में और ये सारी चीजें देखी, क्योंकि उनको हेल्पिंग हैंड नहीं रहता है। हेल्पिंग हैंड नहीं होने के कारण और एक मेंटालिटी होता है कि अभी तुम घर संभालो, अभी हाँ, तुम्हें बच्चा हुआ है, अब तुम घर संभालो, जैसे करियर तुम्हारा चौपट, भले तुम 22 साल की हो या 25 साल की हो, वो अभी नहीं देखना है, अभी तुम्हें बच्चा हो गया, तुम घर संभालो। ये काहे का तरीका है? मैरिज और बच्चे, इट इज लाइक हाउ द मेल मेंबर, वो भी मेल मेंबर जो है वो भी शादी करते हैं, उनको भी बच्चा होता है, लेकिन उनका फोकस क्या रहता है? करियर। उनका फोकस क्या रहता है? प्रमोशन। उनका फोकस क्या रहता है? आगे में क्या जाओ। लेकिन लड़कियों के बारे में ऐसा होता है कि तुम्हारा अभी शादी हो गया, तुम्हें बच्चे हो गए, अभी तुम यही ज्यादा सोचो, अभी घर में ज्यादा ध्यान दे दो। तो ये जो माइंडसेट है कि भले तुम्हें बच्चा हो, शादी हो, लेकिन तुम्हारा जो गोल है तुम्हारे करियर पे ही होना चाहिए। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बच्चा होना, शादी होना, it is how the male counterpart is doing the same एक्चुअली thing. The same thing you are also doing the same
एक्चुअली प्रोसेस, दैट इज उसमें हाउ द क्या फर्क है? वो पेट्रियार्की वही वर्क करती है ना, मैरिज के जरिए जो है वो एक्चुअल में ब्राह्मणिकल सिस्टम है, और पेट्रियार्की भी वैसे ही फंक्शन करती है, और उसपे जो है वो कल्चर के जरिए फंक्शन होती है, मैरिज के जरिए होती है, और आपके ट्रेडिशन के जरिए होती है, वो सारा एवरीथिंग इज पेट्रियार्किकल। तो अब वो उसमें कई कई यस कई बार विमेन्स देमसेल्फ बिकम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उनको लगता है वो कल्चर को मना रही है, लेकिन दे बिकम ए पार्ट। यस यस। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चा कोई औरत को बच्चा होता है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ उसका ही है, हाँ, ये तुम संभालो, तुम्हारा बच्चा है। यस यस, अरे क्या बात है, तुम्हारा बच्चा है, फिर घर वाले या उसके हस्बैंड सबका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, या ताकि वो अपने करियर के बारे में सोचेगी, वो अब बाहर जाएगी, वो कुछ काम करेगी, वो कुछ सोचेगी, वो कुछ लिखेगी, वो कुछ बोलेगी, वो कुछ पढ़ेगी। तो ये सारी चीजें है ना, मतलब आपको क्या करती है, आपको बहुत जकड़ में बांध देती है। तो इसके कारण बहुत सारी लड़कियों का मैंने देखा है, फिर एक तो वो ऐसा आर्गुमेंट रहता है किससे प्यार करेगी, फिर इसलिए जल्दी शादी करवा दे, फिर उसका बच्चा बिच्चा हो जाता है, फिर उसका लाइफ चौपट। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी देखी है। तो यहाँ पे भी हमने खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनरेशन है बाहर निकलेगा ही, हाँ, और ये जाएगा। सारी चीजें से, हाँ ये सारी चीजें उसको फेस करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए हाउ टू डील विद इट, इवन स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा हाउ टू डील विद इट। यदि ये एक्चुअली केस मेरे, हाँ मेरे लाइफ में भी, या मेरे पिताजी ने भी यही सोचा था। हाँ हाँ नहीं, कई बार क्या होता है कि वो फियर जो है मैं इस पे नहीं बोलता, बिकॉज अगर कोई मेच्योर है, जैसे मैंने कहा कि भाई यू आर अब जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज में आप मिलेंगे, को एजुकेशनल कॉलेज में जाएंगे, आपकी दोस्ती होगी, आपकी दोस्ती विद इन कास्ट भी हो सकती है, आउटसाइड कास्ट भी, आउटसाइड। बिकॉज यू डोंट आस्क एनीबडी कि भैया तुम मेरे दोस्त बनोगे क्योंकि मेरी कास्ट क्यों, ऐसा तो नहीं होता है। आप जाते हैं, आपको कई अच्छे दोस्त मिलते हैं, बट ये जरूर है चीजें कि आप किससे भी करें, मतलब आई फील इट दैट वे कि आप जो भी आपका रिश्ता बने, लेकिन आप पहले अपने जो एजुकेशन और जी अपने जी अपने चीजों के लिए, करियर के लिए एटलीस्ट जब तक आप अपने पैर पे खड़े ना हो जाए तब तक एटलीस्ट यू शुड जी जी फोकस जी ऑन जी दैट। जी जी उसके जी बाद फिर डिसाइड करो जो जी भी है, जी बट जी 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 जी, क्योंकि ये मैंने बात देखा सच कि है। ये और बहुत ज्यादा। लड़कियों के, मोस्टली लड़कियों के बारे में तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मैन एटलीस्ट ही हैज अ प्रिविलेज, यस यस even यस, if he gets married, एब्सोल्युटली even if एब्सोल्युटली, he has a children, if या still he gets a privilege, he go out, he goes out, he talk, वो आगे करियर करता है, जॉब करता है। लेकिन लड़कियों के केस में वो नहीं रहता है। तो इसीलिए बीइंग अ गर्ल, तो हमने बहुत ये माइंडसेट में रखना है, नहीं मुझे मेरा पहला करियर सेट करना है, मुझे पहले एक अच्छे मुकाम पे जाना है, उसके बाद ही जो कुछ भी करना है वो, क्योंकि समाज आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं देगा, यस, फैमिली वो तो आपको नहीं। उस तरीके का सपोर्ट नहीं देगा। जब आपको मालूम है आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरा गोल अभी फर्स्ट क्लियर करना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, दूसरे का भी नुकसान होता है ना। घर वाले तो एक उसको मॉडल मान के, अगर समबडी लाइक उनके हिसाब से ड्रिफ्ट कर गया तो दूसरी बेटी का तो रास्ता बंद, क्योंकि पेरेंट्स यही बोलेंगे हाँ, कि बड़े नहीं ने ऐसा। नहीं, घर की नहीं, पूरे समाज की लड़कियां को रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, तो ये एक बड़ा जिम्मेवारी है, खास करके ऐसे लोगों में जो बिल्कुल नीचे से निकलते हैं, और उनको बहुत उन पे ज्यादा होती है, बिकॉज दे बिकम रोल मॉडल, और लोग उनको देख, रोल मॉडल क्या, नेगेटिव रोल मॉडल हो जाता है ना। फिर लोग सोचते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो मैं जल्दी शादी करा दूंगा। तो लोग इसी इसमें जो हाँ है अपने अच्छे खासे, मतलब आई हैव सीन एक्चुअली मैनी पीपल हु आर क्वाइट एजुकेटेड, एंड इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स लिबर्टी, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल जो है ना, यस फादर बन जाते हैं। मतलब वैसे जय भीम बोलेंगे, अंबेडकर जयंती मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन when these things come, particularly women's matter, तो वो वैसे ही ट्रेडिशनल हो जाते हैं जैसे कोई दूसरा, मतलब जिसको आप ब्राह्मणिकल बोलते हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणिकल इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई भी हो सकता है। यस 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 यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। क्योंकि वो बिहेवियर पैटर्न वैसे ही आ जाता है ना, और वहाँ बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नो, यू नो शादी करानी है, जल्दी करानी है,
मैं अपना मुक्त हो जाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना कि अपने नहीं नहीं, वो इज्जत का सवाल आता है उनका, जी 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 उनके, हाँ, वो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा नाम कट जाएगा, ये आता बिल्कुल है, और दूसरी कुछ चीजें नहीं आती उनको, बिल्कुल। ये सारी चीजें, तो ये जो लिंक है, हाँ बिल्कुल, जिनके जिनके मैरिजेज हो जाते हैं उनको लगता है कि हमने तो बस बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब अब तो मेरा सब कुछ गंगा नहा लिया, हमारे यहाँ बोलते हैं ना उत्तर भारत में कि हमने गंगा नहा लिया, मतलब वी हैव डन एवरीथिंग नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड एज ए पेरेंट, कि शादी उदी कर दी अपने बच्चों की, बस अब मैं तो सक्सेसफुल हो गया। तो हाँ सक्सेस इज हाँ हाँ, बेसिकली रिलेटेड टू द मैरिजेज ऑफ योर चिल्ड्रन। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। And that's the very sad part, because जब हम बोलते हैं अम्बेडकर, तो that's what I was saying कि like I think it makes a lot of sense for me to understand that those who embraced the Ambedkarite Buddhist values, they were more enlightened in terms of like sending their children to education, and also a little bit progressive. Yeah. So, Himangi, tell me, what is your vision? What do you want to do now? You want to go to the academic, or you are teaching also, or you have started an organization, or what are your like your own targets? I started an organization called Infin Idea Foundation. Infin, it is a infinite का जो Okay. short form है, Okay. that I made it Infine Idea, infinite. So infinite ideas. So Okay. Infine Idea Foundation, it is basically my focus is on education, Mhm. and the education of the children and education of the youth. Mostly I will and I am looking for. That is one, but I have not given much attention or time on this organization. Another thing, already I worked in different organizations, and even I worked with different universities, colleges as an assistant professor or visiting Okay. faculty. Okay. And already I wrote a lot of papers. Now my priority is to write a book. Already that whatever my thesis is there, so Okay. everybody is in a demand to read that thesis, because it is more of a descriptive Yeah. and more of a qualitative research, and it is a first generation. It is the Yeah. study is on first generation, so everybody is curious because none have done Yeah. research on Nobody the has first done it. generation. Nobody has done from the community, I can say. Yeah. So my priority is to publish that into a book. And another thing, I'm looking for a postdoc. Okay. But it will take time because as the corona situation, Yeah. and simultaneously I'm looking for a job, assistant professor. So I will take a job first, and then at the same time I will look for a postdoc position. And if I get a postdoc position, then definitely I will go for a postdoc. And even the postdoc also, I will take a topic related to this only, but in a different angle. Good. So, my best wishes for your postdoc and work. But what final message you want to give to the community elders, to the community younger, and the community women? And community? Women. Women. Okay. The 3 messages So I want for my, everyone. yeah. So my this understanding has come from the literature and from the ground reality. And after everything, understanding everything, it is my own analysis and it is my own expression, I can say. So this present generation doesn't know how many generations, how many past generations have been into this profession, have been into this work. So my request or my advice or my humble kind of saying to them that please do not involve in this occupation. Stop the first here only, and see the already those who are in higher education,
or who have not taken a higher, those who are taken a higher education, take a lead of your community, take a in charge, be a in charge of your community. And today, just imagine that you want to see your community after 20 years or after 10 years or after 30 years. Imagine your community and strategically plan it and work on it. So that is what my advice is to the community people and to the young generation. And mostly now, if you talk about the male and female, so Young girls, young women. don't, young generation. So and both want to do something for their community, both male, girl and boys. But girls still in the, because of the family condition, because of the social condition, they are still in the patriarchal mindset that after marriage what. So I would say marriage you should not see a marriage, it is a dead. It is a dead of your life. Marriage, it is just like a one part, like how you take a birth, okay, how you go for an education, how you go for any kind of job. Just take a marriage as one kind of incidence in your life, but your whole purpose should have a different goal. So different vision, mostly girls, mostly and their parents I am telling. So have a more vision beyond your kind of what your personal life or what your personal crisis. And I would say that as I want to see this community after 10 years or after 15 years or after 20 years in a different level. The same way everybody should imagine, the educated, uneducated, those who are first generation higher educated should have their some imagination for their community. Okay, and what about our Ambedkarite friends who are in the movement? How should they address this issue? Yeah. So what I see, I also been a part of this Ambedkarite movement and fully Ambedkarite movement. And even some of the conferences I attended, some of the public speaking I attended, but none of them have talked on the Safai Karmachari issue. None of them have talked. Maybe either because from the Safai community, there is no such kind of leader who has come or who has dialogue with them or who has penetrated their issue. Yes, this is also very relevant and important because majority, almost 95% are SCs, but still SCs are only not talking on this SC people. So how this controversy? So we really have to work on this and really give important to that community. And those who are first generation educated, take them with you, because what I hear is the caste dynamics comes. They have like 4 castes. So they the Rukhi caste or the Valmiki caste, they said that Jabim wala is there na. So they are very उनको वो बहुत खुद को बहुत ज़्यादा शाने समझते हैं. हाँ, because they feel that जबी वाले जो है वो भगवान को नहीं मानते और वो फिर वो बोलते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान को मानते हैं तो हम बहुत सुपीरियर है और जो भगवान को मानने वाले हैं इंफीरियर है. तो ये जो आपका जो माइंडसेट है ना, उनको आप पहले ले लो. जब तक आप उनको लेंगे नहीं, जब तक आप फ्रेटर्निटी डेवलप नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? And they are really want the Jaibi wala should go there and take them. तो ये जो माइंडसेट है जो अम्बेडकराइट लोगों ने अपने आप में अरोगेंस जैसा उन्होंने ये किया है कि हम भगवान को नहीं मानते. Okay, I can understand because Buddha also said that there is no God. Even he himself not declared that he is a God. Neither Baba Sahib has given any importance to the God. But those SCs put them down कि तुम भगवान को मानने वाले हो तो तुम आप ये करने वाले. तो
उनको ले लो, ठीक है मान रहे तो मान लो, लेकिन बाबा साहब ने भी ये बोला था, ओके आपके जो लीडर्स है उन्होंने भी ये बोला था, ये बोला था, ऐसा किया था, ये ऐसा सब सारी चीजें उनके साथ होनी चाहिए, उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। और कहीं पे तो फैटर्निटी, कहीं पे तो डायलॉग इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। हाँ, फेथ बीच में नहीं आने चाहिए, क्योंकि फेथ जो रखता है उसको रखने दीजिए, वो जो पढ़ेंगे लिखेंगे दे विल ऑटोमेटिकली कम, बट फर्स्ट इज fraternity, as you said. Yes, very true. Because Very first true, what very happens true. that we start judging them with their faith. That is wrong. So don't judge people just because he is worshipping, और आपकी मदर ने कोई पूजा करा तो खराब नहीं हो जाती, because most of the people जो पूजा करते हैं वो they have an intensely that mind कि कम से अपने बच्चों के भले के लिए पूजा कर रहे हैं. Basically then mindset they have that कि my daughter should grow, my son should be happy. So most of this puja is लगातार like that. So I think once you go with them, extend dialogue, take them to your places, and so that makes people like they are wanted. They feel wanted. So ये wantedness is very important. हाँ, अभी जैसे मातंग कास्ट के लोग हैं, मातंग कास्ट वो अभी ये अन्ना भाऊ साठे, तो अन्ना भाऊ साठे उनको एक लीडर के इसमें, तो ठीक है उनकी कम्युनिटी से जो लीडर आता है लेट देम हाँ, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे ने तो ज्यादा करके बाबा साहब के ऊपर ही बोला है। तो लेकिन यंग जनरेशन जो है, जो आपने जैसे बोला कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो ये बाबा साहब उनको बराबर समझ में आएगा। तो ये बराबर अपने आप समझ में आएगा कौन सही है, कौन गलत है, क्या नहीं है। तो लेकिन पहली बात तो ये माइंडसेट से जाना चाहिए कि इनको हमें साथ देना है, इनको हमें उभारना है, बस पहले ये माइंडसेट। बिल्कुल वो फेथ सवाल नहीं आना चाहिए। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कौन से भगवान को मानते हो, क्या करते हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप भी एससी हो, हम भी एससी हैं, तो हम कैसे मिलके साथ में हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। I think that is the most important. That is the most important thing. यही है। तो एक और लास्ट में पॉइंट बिफोर यू लीव, आपने इतना पढ़ाई किया, और क्योंकि बीइंग ए गर्ल फ्रॉम दी दलित कम्युनिटी, तो आपको तो बहुत फेस करना पड़ा होगा कॉलेजेस में, एकेडमिया में, डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग आधे, जैसे आपने कहा ना कि कॉलेज में पहले दिन बाहर निकल करके आप आ गए, एंड दिस काइंड ऑफ कंडीशन हैपेंस। So because we want other who listen this conversation, they learn from your experiences. So how did you face any kind of or discrimination? जरूर करने कुछ आया होगा, and how did you handle it? So this both things are important. Yeah. See, जैसे अभी जो कॉलेजेस में वगैरह जाते हैं तो ऑब्वियसली जिस बैकग्राउंड से जाते हैं तो मराठी बैकग्राउंड रहता है, नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड, मराठी तो छोड़ो, नॉन एजुकेशन बहुत सारा मायने करता है, उसके भी आपकी लैंग्वेज भी बहुत सारी मायने करती है। तो आप जब जाते हैं तो इवन आप किससे ज्यादा बात नहीं कर पाते या किससे ज्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि सब जगह पे वहां पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है ना, जो स्टडी जो माहौल है ना, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज्यादा काम करने का। अभी डीवाई में पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आई, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, मैंने सोशियोलॉजी लिया था, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं कॉलेज में फर्स्ट आई। ना मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड था, ना मेरे पास ट्यूशन था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास यही था कि मेहनत करो और लिखो। मतलब लिटरली कितनी घंटे पढ़ाई करते थे मालूम नहीं था, और उसमें से डिक्शनरी तो एकदम सिर के बाजू में ही रहता था। सोते समय भी पहले उठो तो डिक्शनरी, सो तो डिक्शनरी, क्योंकि उसके बिना आप जियोगे कैसे? क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ गए हो कि यहाँ पे घर में किसी का ई भी नहीं मालूम इंग्लिश का, घर में ई भी नहीं मालूम, कोई पढ़ा लिखा नहीं है घर में। आप जब बाहर जा रहे हो
तो बाहर आपको कैसे फेस करना है, क्वेश्चन कैसे रेज करना है, या किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको आंसर कैसे देना है, ये। और आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो भी अलग अलग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के रहते हैं, तो उसमें भी आपको उस तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो आपके पास एक ही रहता है कि आपको आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका पढ़ाई कम हो गया तो आपका स्टेटस भी कम होता है कि ये तो इसको कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो टीचर भी आपको ध्यान देते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं, यस इसको आता है, इसको बहुत अच्छे से आता है कुछ सारी चीज। तो ये तो आपकी मेहनत है, ये तो आपका स्ट्रगल है, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही करना पड़ेगा। भले आपको कोई बोले इसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, इसका ग्रामर अच्छा नहीं है, इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छा आता नहीं, इसको लिखना अच्छा आता नहीं है, कुछ भी बोले, गंदे से गंदे कुछ भी बोले, तुम अपना कॉन्फिडेंस जो है या अपना जो खुद को प्रेजेंट करने का है वो छोड़ने का नहीं, या उसके ऊपर मायूस होने का नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, इसने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। उससे कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुझे जितना आता है वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मुझे मालूम है किस स्ट्रगल से आई हूँ, और ये यहाँ तक आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तो इसके कारण जो भी आपको कुछ भी टॉन्ट करे या कुछ भी आपको बोले, आपके उस तरीके से मायूस नहीं होना है, और किसी को रिप्लाई देने की भी जरूरत नहीं है कि तुमने क्यों ऐसा मुझे बोला, तुम्हें बहुत ज्यादा आता है क्या, मुझे कैसे नहीं आता। कोई जरूरत नहीं है कभी रिप्लाई नहीं देने का। उसको पॉजिटिव वे से कैसे ले कि अगर वो बोले तुम्हें तो नहीं आता है, तुम्हारा तो ग्रामर भी अच्छा नहीं है, ये क्या है, मेरे तो कॉपी भी फेंक के दिए उन्होंने टीचर्स लोगों ने। लेकिन यू टेक इट पॉजिटिवली, you take it positively कि how you have to improve. Yes, this is a condition how I have to improve, because see if you start arguing, if you start questioning, if you start आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर वो क्यों, तो वो झमेला अलग झमेला रहता है। अगर आपको खुद अच्छे से आपको खुद उसको ये करोगे तो अपने आप ही ये हो जाएगा। दूसरी बात, ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लगी ये चीज की कि अगर आप भले ही एजुकेशन में है, लेकिन आप जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके टच में रहो, और रहना जरूरी है, रहने जरूरी है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, वो आपकी काउंसलर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग आपके सपोर्ट सिस्टम में नहीं रहेंगे, यहाँ के लोग आपकी काउंसलर नहीं रहेंगे, ये लोग आपको बराबर काउंसलिंग में भी या सपोर्ट सिस्टम में भी या ऑर्गेनाइजेशन, या आपको बहुत बड़े बड़े जो लोग अपने जो फोरफादर होके गए, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने कैसे ये किया, ये प्रेरणा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो इसीलिए कहीं पे आपको सोशल टच के साथ रहना जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको सोशल टच में नहीं रहेंगे ना, तो अगर थोड़ा भी कुछ हो गया तो मायूस हो गए, थोड़ा भी रेस्ट्रिक्शन हो गया तो आपको लगेगा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि मैं दलित हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। अरे आप जब आपको समझ में आ जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, और ये बाउंड टू हैपन विथ यू, ये इज बाउंड टू हैपन विथ यू, ये जब समझ में आएगा देन यू विल स्ट्रगल। अगर आप विक्टिम के जैसा अगर समझ में आ रहे हैं मैं विक्टिम हूँ, देन यू विल लॉस, आपको कोई उबार नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपको ये आइडियोलॉजी से इनके साथ, और कहीं मुझे ज्यादा लगता है ज्यादा वोकल होने की एटलीस्ट एजुकेशन इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो होने ही वाला है आपके साथ। अपना फोकस करें, मतलब अपने सब्जेक्ट पे, अपने इशू पे, अपने एजुकेशन पे। हाँ, अपना फोकस करें और आपका स्ट्रेंथ बढ़ाए। जैसे मैंने बोला, आपके एजुकेशन आपका स्ट्रेंथ है, आपका जो बाकी का फ्रेंड सर्कल जो आपके जिस तरीके से है वो आपका स्ट्रेंथ है, आपके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके स्ट्रेंथ है। तो ये जो है ये आपके स्ट्रेंथ है,
जैसे अभी मेरे घर में मेरे पिताजी या इन लोगों के थ्रू बाकी के मतलब सोशल इसमें मैं पार्टिसिपेट होती थी, ये होता था, समझ में आता था कि समाज ऐसा ही है, इसमें ऐसा ही होने वाला है, इसके साथ आप कितने भी झगड़ा करो, किसमें कितना भी ये करो, कुछ होने ही नहीं वाला है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। और बीइंग इन एजुकेशन आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, आपकी लिमिटेशंस है। जब तक आप हायर पोजीशन तक नहीं जाओगे, आप कुछ मकाम तक नहीं जाओगे, आपके हाथ में कुछ पावर नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको दबाने वाले बहुत हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपको अच्छे से दबा सकते हैं। और एक बार आपका एजुकेशन चला गया तो आप क्या करोगे, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली की टू गो अहेड, दूसरा की है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही है कॉम्प्रोमाइज। ये आप बोलेंगे कि हर टाइम पे मैं वोकल हो जाऊंगी, हर टाइम पे मैं एग्रेसिव हो जाऊंगी, हर टाइम पे मैं ये, वो नहीं, मतलब नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल वे में नहीं चलता है, प्रैक्टिकल वे में नहीं चलता है। कई बार एग्रेसिव होने से मतलब यू हर्ट योरसेल्फ ओनली, मेनी टाइम व्हेन यू बिकम वेरी एग्रेसिव तो हमारे को ही वो ज्यादा हर्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, क्योंकि अभी एटलीस्ट मोस्टली मैं पीएचडी लेवल पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा बहुत मैंने मतलब अपने ही जो हायर प्रोफेसर्स है उन्होंने ही थोड़ा बहुत ऐसे टॉन्ट बाजी की कि बीइंग अ वुमेन, अगर मैं तुम्हें इतना क्यों टाइम दूं, उससे अच्छा मैं दूसरे एक लड़के को टाइम दूंगा तो उसका घर बच जाएगा। तो ये जेंडर वाले जो, हाँ हाँ, तो अभी मैं क्या झगड़ा करूं उनके साथ कि आपने ऐसे कमेंट क्यों दिए मुझे कि मैं क्या लड़की हूँ तो मेरा क्या अधिकार नहीं है क्या, कि मैं कमा के क्या मैं उड़ाने वाली हूँ क्या, मैं भी घर में ही देने वाली हूँ। लेकिन ये जो है ना, क्यों अभी समझ में आया, क्योंकि ये माइंडसेट वो तो बदलने वाली नहीं है। या तो ठीक है आपने बोला, लेकिन ये बात जो है, तो इसलिए हमें पावर पे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप अपनी पावर तक नहीं आओगे तब तक आपको कोई सैल्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आपको यहाँ वहां आपको मतलब ये सारी चीजें मिलने ही वाली। तो ऐसे बहुत सारे टॉन्ट जो है वो हमने भी झेले हैं और हमने भी वो सुने हैं, लेकिन चुप बैठे क्यों, क्योंकि हमें मालूम है हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस इसके साथ आर्ग्यू करना नहीं है या इसको एक्सपोज करना नहीं है। क्या होगा क्या इसको एक्सपोज करके क्या होगा, क्या मिलने वाला है उसका, और झंझट, फिर ये कमेटी बैठेगी, फिर वो कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा। उससे अच्छा मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अच्छा अपने लाइन पे रहना है। उसको और पैट्रियार्किकल सोच में रहो, और कास्टिस्ट से, क्योंकि मेरे एजुकेशन पे अफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, मेरे मार्क्स पे तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो बस उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं और इसमें चली जाऊंगी। क्योंकि ये जो टॉन्ट ऐसे आए हैं वो अपने दलित प्रोफेसर से ही आए हैं ना। अच्छा ओके ओके, अच्छा मतलब पेट्रियार्की तो कहीं भी हो सकती है ना, ये तो दलित में हो सकती है, नॉन दलित में हो सकती है, कहीं भी है। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार लोग क्या होता है कि शॉक हो जाते हैं, मतलब जैसे आपने कहा, अभी हमने तो आपको पूछा भी नहीं कि कैसा, बट यू नरेटेड योर ओन एक्सपीरियंसेस, बट मेनी टाइम पीपल गेट शॉक, अरे ये तो हमारे कम्युनिटी के प्रोफेसर से आ गया। बट आई से दिस इज नॉट ओनली दैट इज ए पोजीशन आल्सो, ही इज इन अ पावर पोजीशन, पावर पोजीशन से भी क्या And he is a professor, he is in power position, and still वो, अगर आप ऐसे बोलते हैं इतना अगर टाइम में एक लड़के को दूंगा तो मैं उसका घर बच जाएगा, फिर हम क्या यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं? लड़कियां पढ़ने आती है तो वो भी घर में ही कंट्रीब्यूट करेगी ना। और अब कहाँ पे हम क्या ऐसे पैसे की उड़ाएंगे क्या, ऐसा है पत्ते के जैसा? तो ये काहे का तुम्हारा ये है। एक्चुअल में वो भी होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना इंडिया में, एकेडमिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी कितना प्रोग्रेसिव है, वो रिग्रेसिव एक्चुअली स्टेटस को वो व्यवस्था को उतना ही रखना चाहते हैं, सेम द डोमिनेंस ऑफ द पेट्रियार्की और व्हाट वी से ब्राह्मणिकल वैल्यूज। या
और मुझे इतना बात समझ में आया है, those who are in a privileged position, in whatever sense, in whatever sense, caste से रेस से लेके या जेंडर से लेके रहो या मनी से लेके रहो या पावर से लेके रहो, उनको बहुत जल्दी अच्छा नहीं लगता है कि अपना प्रिविलेज निकल जाए। हाँ बिल्कुल। वो प्रिविलेज मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका प्रिविलेज उनको बरकरार रखना ही है और उसके लिए उनको लगता है कि मेरा काम यही है कि मेरा प्रिविलेज बरकरार रखे। ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड देखो ना, ये इंडिया का ही बात नहीं कर रहे, अक्रॉस वर्ल्ड देखो, जो भी प्रिविलेज पोजीशन में है वो स्ट्रगल उनका क्या चल रहा है, उनका स्ट्रगल यही चल रहा है कि हम कैसे अपने प्रिविलेज पोजीशन में रहे। और जो नॉन प्रिविलेज वाले जो है उनका स्ट्रगल ये है कि हम अपने वो लेवल तक कैसे बढ़े, इक्वालिटी पे कैसे आए। लेकिन उनका स्ट्रगल क्या है, कैसे मेंटेन करे प्रिविलेज, वो कैसे बरकरार करे। तो ये हर जगह पे अक्रॉस वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये मेरा मतलब मेरा जो है कि अपना जो फाइट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए और बहुत हायर लेवल पे होना चाहिए। या तुम उसके ऊपर बुक लिखो, किताबें लिखो, या फिर बाहर प्रीच करो, या फिर तुम बाकी ऐसे ऐसे कुछ पॉलिसी फॉर्मुलाइज करने में लाओ कि इस तरीके से काम करो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम हो जाए। अभी बहुत सारे मैंने देखा है कि ऐसे पढ़ा है कि महिलाएं हैं कि वो जैसे एक आईआईटी की एक लड़की ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसके इन-लॉज उसको परेशान कर रहे थे। तो ये कुछ माइंडसेट जो है ना, कहीं पे आप उस माहौल पे नहीं घोलना चाहिए कि जहाँ पे आपका मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस खराब हो जाए। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो पोजीशन में रह ही रहे हैं कि आपको वहां पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो आप इस पोजीशन में जाएं और वहां पे आपकी एक लेवल बनाएं और फिर वो टर्म में आओ। मतलब ये मेरा मानना है और ये मेरा प्रैक्टिकल में मतलब सजेशन है। No. It's very important whatever you said, because that is why I wanted you to speak, because बहुत सारे लोग aspiring हैं, particularly the girls. तो aspiring girls जो होती हैं उनको पता चले कि कैंपसेस के माहौल कैसे होते हैं या एकेडमिया में क्या conditions हैं and how they tackle it. So it's very important whatever you said. So thank you very much, Himangi. We hope we have another conversation after some days, and wish you more power and success. Thank you. Thank you, Jaydeep.